और खेल दोबारा शुरू होने वाला है। दोनों बैट्समैनों ने भी आपस में कुछ गुफ्तगू की और गुफ्तगू करने के बाद वो भी अपनी जगह पर जाकर सेटल हुए। हमारे दाएं जानिब जो है वो डग आउट है कलंदर्स की टीम का। बाएं तरफ भी एक डग आउट बनाया गया है, लेकिन इस वक्त वहाँ पर कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं है। अलबत्ता दाएं जानिब के जो डग आउट्स हैं उनमें खिलाड़ी मौजूद हैं। तैयार है अगली गेंद फेंकने के लिए। फैज़ान है बॉलर। अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा किया है फैज़ान ने अब तक। आया गेंद करने के लिए और ये गेंद जो है वो लेग स्टंप पर थी, उड़ती हुई आई, मगर इस मरतबा बैट्समैन ने सही पोजीशन में आते हुए उसे पुल किया। बड़ा ज़ोरदार शॉट था और हमारे बाएं जानिब काउंट्री बॉक्स के जो फील्डर खड़े हुए हैं वो बड़ी बेबसी के आलम में गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर जाते हुए देखते रहे। बड़ा ज़ोरदार छक्का। तो ये पहला छक्का इस मैच का। मजमूई स्कोर हो गया 7 और अब तक एक खिलाड़ी आउट हुआ है। 7 for 1। फैज़ान ने अब तक 3 गेंदें किए हैं और ये उनकी चौथी गेंद होगी। दराज खत बॉलर, दाएं हाथ से गेंद करने वाले, लंबा स्टार्ट, दौड़ते हुए आए, गेंद की और ये गेंद लेग स्टंप पर थी। उससे फ्लिक करना चाहते थे मगर कामयाब नहीं हुए। बड़ी अच्छी विकेट कीपिंग का मुजाहरा किया विकेट कीपर ने। अपने बाएं जानिब डाइव करते हुए गेंद रोकने में कामयाब हुए और कोई रन न बन सका। I believe it's going to be a very interesting encounter between two strong sides of this tournament. All in all, 11 teams participated in the tournament and these 4 have qualified for the semi-finals. All important semi-finals, and the winner will play the coveted final. And later in the night, there will be a prize distribution. 20,000 is the prize money, which will be distributed between the winner, runner-up and some individual prizes. Faizan was talking to his co-fielder. Now he is getting ready to bowl the next delivery. He scores 7 for 1. And Waleed and Bilal are the batsmen. Now Waleed is facing and another beautiful shot by Waleed. He didn't try to force the pace, but it was sheer beautiful flick with perfect timing and perfect footwork. So another 6. This takes the score on to 14 for the loss of 1 wicket. Waleed is not out 12. Bilal is not out 1. Waleed is a very fine and promising batsman. He has proved his worth by scoring so many runs in 2 tournaments which have been played here on this ground, and he is in good form. So let's hope for a grand display of batsmanship by this young man. Faizan again goes to Waleed outside the off stump, pretty wide, and signalled wide by the umpire. So 1 more run added, 15 for the loss of 1 wicket. Good productive over for Pakistan Stars, 15 for 1 for the loss of 1 wicket. Of course, they lost a very important wicket, but Waleed is in good nick and he played some beautiful strokes, 2 grand sixes, and he has carried his total to 12 on 3 balls. Bilal has scored just 1 and Faizan is ready to bowl the next delivery. There is a wicket keeper standing well behind the stumps, and then he doesn't have any slip. There is a wide gully, then he has a short fine leg. Later on I'll tell you the field position, and once again a beautiful pull, although the feeder tried to stop it, but there was no stopping and the ball crosses the boundary line. Another 6, third sixer in this over. So it's proving to be a very expensive over by Faizan, and now Waleed moves on to 18, Bilal not out 1, and Faizan has conceded 21 runs in his first over. Cloudy afternoon here at this ICCMC stadium. No sign of sunshine and a strong breeze blowing across the field. Faizan comes in and bowls and he pulls again towards the square leg, misfield by the
fielder who tried to dive and stop the ball didn't succeed, but in the meantime, another fielder from mid-wicket runs across and he fields the ball, but in the meantime, one more run added. This takes the score on to, I believe, 22. The score moves on to 22 at the end of the first over. So good first over for the side, batting side. 22 runs in the first over and 3 sixes, 3 huge sixes, all hit by Waleed, who seems to be in a very good form and playing very confidently, and he has played some delightful strokes. Some matches of this tournament have been very exciting, and there have been some upsets. In the first match, on the first night, Washington, after scoring 144 runs, lost the match, which was pretty surprising. Then they lost another match. But in the meantime, SoCal is in a very good nick, and also the other 2 or 3 teams are in beautiful form. Field is being readjusted. There are minor changes in the field. फैज़ान का पहला ओवर बड़ा एक्सपेंसिव था, जिसमें उन्होंने 22 रन दिए और शॉर्ट पिच गेंदें की और उसका खमियाजा उन्हें भुगतना पड़ा. 3 छक्के उनकी गेंदों पर लगाए गए. अगला ओवर शुरू होने वाला है और ये गेंद आउटसाइड द ऑफ स्टम्प, एक मरतबा फिर खासी वाइड गेंद थी. बैट्समैन ने उसे खेलने की कोशिश की मगर कामयाब नहीं हुए. अंपायर ने अलबत्ता कोई इशारा नहीं दिया और बॉलर चलते हुए जा रहे हैं वापस अपने बॉलिंग के निशान पर. ये स्टेडियम तब्दीली के मराहल से गुजर रहा है. खासा वसी और ये स्टेडियम है. इनफैक्ट 2 ग्राउंड्स हैं यहाँ. एक वो ग्राउंड है जहाँ इस बार मैच खेला जा रहा है और दूसरा इससे बिल्कुल मिला हुआ थोड़ा दूर हमसे वो ग्राउंड है. और अगली गेंद भी शॉर्ट पिच गेंद थी और एक मरतबा फिर बड़ा ज़ोरदार शॉट खेला बैट्समैन ने और ये एक और छक्का है, चौथा छक्का इस इनिंग का. एक मरतबा फिर भरपूर क़ुव्वत वाला स्ट्रोक और बहुत ही लूज़ गेंद थी. मैं समझता हूँ कि शॉर्ट पिच गेंदों से वैसे भी एतराज़ करना चाहिए, क्योंकि जो टेप बॉल है वो वैसे भी बहुत ज़्यादा उछलती है, तो आपको कंट्रोल रखने की ज़रूरत है. और जैसा कि मैं कल भी बता रहा था कि इसकी ग्रिप थोड़ी सी मुश्किल है. So now the score moves on to 28 and 34. That's a galore of sixes, and Waleed very quickly moves on to 31 in just seven balls. He seems to be the danger man for the opposite side. One will have to be careful while bowling to him. Now let's see that who's the next bowler. And now Taimur has been brought. Taimur will be bowling. Taimur already conceded 12 runs on 3 balls. Captain, after talking to Taimur, goes running back to his field position, and the batsman is Waleed. Waleed will be facing Taimur. Taimur comes in and bowls to Waleed, and Waleed hits him again but misses this time, and the ball goes to the wicket keeper. Umpire signals a wide, so 1 more run added, and with this 1 run, the score moves on to 35 for the loss of 1 wicket. Breezy afternoon here in Houston. The temperature is still quite high, but not that much as it was yesterday. Yesterday was the hottest day. Everybody was complaining of the heat. We are more comfortable today. Yesterday, even we couldn't feel the AC. Taimur once again gets ready to bowl the next delivery to Waleed, who is not out on 31, and this time
Waleed tries to pull it, doesn't connect properly, the ball goes to the wicket keeper. Waleed tries to steal a single, but the wicket keeper is very, very agile and alert, so there is no chance of any run. The score remains at 35 for the loss of 1 wicket. Waleed not out 31, and Bilal has scored just 1 run. Our co-commentator hasn't arrived as yet, Mr. Adil. He's playing a cricket match. He's also an active cricketer, and he will be joining us soon. Taimur once again comes in and bowls. This time he drives with the lower part of the bat, and the ball goes to short mid-wicket where the fielder is already there. So just no run added, 35 for the loss of 1 wicket. And I think that last over remains for Taimur. Still there is no slip. There is a point, and then we have a short fine leg, short square leg, then backward square leg, mid-wicket, deep mid-wicket on the boundary line, and then we have a long on. That's the onside field. On the offside we have a long off, a cover, and a point. 3 fielder on the offside, 6 fielder on the onside, short, outside the off stump, rising delivery, and batsman leaves that alone, and the ball goes to the wicket keeper who collects it from behind the stumps. No run, the end of the over. At the end of the second over, Pakistan Stars are 35. They have lost just 1 wicket. Waleed is in a very good form, scoring well, 10 deliveries, and he has scored 31 runs. Bilal is not out 1, and 3 overs. Now these coming 3 or 4 overs will be very, very crucial for both teams, as they will try to overtake each other. The bowling side will try to contain the batsmen, and the batsmen, especially Waleed, will try to snatch as many runs as possible. SoCal Qalandar has been doing very well with the ball and with the bat during this tournament, and so about Pakistan Stars, both the teams are very strong in 3 departments of the game: bowling, batting, and fielding. Naturally, it's going to be a good competition. Definitely, if they are able to score 125, 130 runs, SoCal will try to chase it, and they can do it. They have some very good batting lineup and some good batsmen. Now it's Arsalan in action. Arsalan will be bowling, and the batsman is Bilal. Arsalan to Bilal. Arsalan is also a medium pace bowler, tall, lanky fellow, not happy with his field positions, making minor changes here and there. Now he's getting ready. Batsman is also ready, and Arsalan starts running, comes running in and bowls, and this time once again the batsman tries to hit him, flick him, but they didn't succeed. The ball comes to short fine leg position where the fielder is ready to field. No run. 35 for the loss of 1 wicket. पाकिस्तान स्टार्स ने पहले बैटिंग करते हुए 35 रन बनाए हैं और एक खिलाड़ी आउट हुआ है. वलीद का स्कोर है 31, जबकि बिलाल ने 1 रन बनाया है. अगली गेंद के लिए दौड़ते हुए आए. गेंद करने के लिए फुल टॉस थी और उसे निकालना चाहते थे मिड विकेट के बराबर से, मगर कामयाब नहीं हुए. डीप और वाइड मिड विकेट पोजीशन पर फील्डर मौजूद हैं. सिर्फ 1 रन लेने का मौका मिल सका बैट्समैन को. 36 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट. 36 एक खिलाड़ी के आउट होने पर. अरसलान ने 2 गेंदें अभी तक की और सिर्फ 1 रन दिया. इस गेंद पर कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी है. मैंने आपको पहले भी बताया था कि चूँकि रेड और वाइट ट्रेडिशनल बॉल्स के मुकाबले में इस पर ग्रिप मौजूद नहीं है,
तो आपको इसका ख्याल रखना होता है कि गेंद आपके हाथ से न छूटे और आप बहुत ज़्यादा तेज़ गेंद करने की कोशिश न करें, क्योंकि वो अक्सर वाइड होने का इम्कान होता है। अरसलान वंस अगेन दौड़ते हुए आ रहे हैं गेंद करने के लिए। अरसलान आए, गेंद की और इस मरतबा ज़ोरदार हिट लगाई, नहायत ब्यूटीफुल स्ट्रोक और तकरीबन फ्लैट स्ट्रोक था। गेंद बड़ी तेज़ी के साथ, बिजली की तेज़ी के साथ बाउंड्री लाइन के बाहर जाकर गिरी। बड़ा शानदार छक्का इस मरतबा वलीद का, और इसके साथ ये वलीद का स्कोर हो गया 37। बड़े ख़तरनाक अज़ाइम लगते हैं वलीद के। 11 गेंदें अब तक उन्होंने खेली हैं, 42 मजमूई स्कोर एक खिलाड़ी के आउट होने पर। अरसलान ने 3 गेंदों पर 7 रन अब तक दिए हैं। अरसलान आए, गेंद की और ये गेंद लेग स्टंप पर थी। इस मरतबा उसे फ्लिक करना चाहते थे, गेंद बल्ले के निचले हिस्से पर लगी, मगर फाइन लेग पोजीशन पर फील्डर मौजूद थे। गेंद बड़ी तेज़ी के साथ उनके पास आई और रन लेने का कोई मौका न मिल सका बैट्समैन को। 42 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। पाकिस्तान स्पोर्ट्स पहले बैटिंग करते हुए तैयार हैं अगली गेंद फेंकने के लिए। अरसलान दाएं हाथ से गेंद करने वाले मीडियम पेस बॉलर, उनके सामने बैट्समैन है वलीद, जो अभी तक बड़ी उम्दा बैटिंग कर रहे हैं। और इस मरतबा वलीद का ऊंचा और ज़ोरदार शॉट, हालांकि फील्डर बिल्कुल बाउंड्री लाइन पर लॉन्ग ऑफ पर मौजूद थे, मगर उनके लिए कोई मौका नहीं था। गेंद उनके पीछे जाकर गिरी, साइड स्क्रीन के बिल्कुल करीब, और अंपायर के हाथ हवा में बुलंद हुए, जो इस बात का इशारा है कि ये एक और छक्का है वलीद का। वलीद ने छक्कों की भरमार कर दी है। उनका इनफरादी स्कोर बड़ी तेज़ी के साथ बढ़ता हुआ 43-43, और सिर्फ 13 गेंदें उन्होंने अब तक खेली हैं। बिलाल ने 2 रन बनाए हैं, तो 2.5 ओवर्स में 48 मजमूई स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर। बड़ा अच्छा आगाज़ पाकिस्तान स्टार्स का। अरसलान एक मरतबा फिर गेंद करेंगे, वलीद को आए, गेंद की और वलीद ने इस मरतबा आहिस्ता से गेंद को खेला, फाइन लेग की जानिब मिसफील्ड हुई और गेंद गालिबन उछल गई थी। दूसरे फील्डर को दौड़ कर आना पड़ा और इस अरसे में 2 रन लेने का मौका मिल गया बैट्समैन को। इन 2 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 50 रन मुकम्मल हुए इस इनिंग्स के। वलीद नॉट आउट 45, बिलाल नॉट आउट 2। तो पाकिस्तान स्टार्स इन ए स्ट्रॉन्ग पोजीशन। बहुत अच्छा स्टार्ट लिया है पाकिस्तान स्टार्स ने, 50 रन बनाए हैं 1 विकेट के नुकसान पर, और वलीद अभी तक उनकी बैटिंग के हीरो। उन्होंने इंडिविजुअली 43 रन बनाए हैं 13 गेंदों पर। चंद बड़े अच्छे डिलाइटफुल स्ट्रोक्स उन्होंने खेले और किसी फील्डर को अभी तक वो खातिर में नहीं लाए। बड़े आराम से स्ट्रोक्स खेलते हैं और बड़ी जान है उनके स्ट्रोक्स में। वलीद ने पिछले टूर्नामेंट में भी मुझे याद है बड़ी उम्दा बैटिंग की थी, और इस टूर्नामेंट में उन्होंने वहीं से अपने स्कोर का आगाज़ किया जहां पिछले टूर्नामेंट में ख़त्म किया था। अरसलान ने अपने पहले ओवर में 14 रन दिए, तो खासा महंगा ओवर साबित हुआ अरसलान का। अगला ओवर शुरू होने वाला है और अब फवाद गेंद करने के लिए आए हैं। तो तीसरे ओवर के अख्तिताम पर मजमूई स्कोर है 49, जिसका मतलब ये है कि रन बनाने की रफ्तार है 16.33। पहले स्कोर बोर्ड पर 50 रन्स दिखाए गए, लेकिन 1 रन कम कर लिया गया है, गालिबन कोई एडजस्टमेंट थी जो स्कोर रन की। तो अब है 49 फॉर 1 विकेट। फवाद अपने बॉलिंग रनअप पर तैयार हैं गेंद करने के लिए उनका पहला ओवर। फवाद आए बिलाल को गेंद करने के लिए और बिलाल ने अपना बल्ला घुमाया, कनेक्ट करने में कामयाब हुए और गेंद उनके बल्ले से लगने के बाद आई लॉन्ग लेग पोजीशन पर, मगर वहाँ फील्डर उसे सही तरीके से रोकने में कामयाब नहीं हुए। दूसरे फील्डर को भाग कर आना पड़ा और मैं समझता हूँ कि मिस फील्ड से एतराज़ करना चाहिए। बड़ा अलर्ट होने की ज़रूरत है। ये गेंद वैसे भी उछलती है आउटफील्ड में आने के बाद, और मेरा ख्याल है यहाँ भी यही गलती हुई कि वो पहले गेंद तक पहुँच गए थे, लेकिन गेंद उछल गई और वो गेंद को रोकने में कामयाब नहीं हुए। 51 नाउ फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। 51 मजमूई स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर। 2 रन अब तक फवादे दिए हैं और इस मरतबा शॉट लगाने की कोशिश की, मगर सही तरीके से खेलने में कामयाब नहीं हुए। इस मरतबा भी शॉर्ट गेंद थी, मगर खुशनसीबी थी बॉलर की कि बैट्समैन उसे हिट लगाने में कामयाब नहीं हुए।
52 मजमूई स्कोर। इस 1 रन के इजाफे के साथ एक खिलाड़ी आउट हुआ है। ह्यूस्टन बिलाशुबा टेक्सास में वाक़ है और टेक्सास यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की सबसे बड़ी रियासत, और बड़ी तेज़ी के साथ ह्यूस्टन में तब्दीलियाँ रूनुमा हुई हैं। अगली गेंद आए गेंद करने के लिए, और इस मरतबा ज़ोरदार तरीके से हिट लगाने में कामयाब हुए। 2 फील्डर मौजूद हैं, उनमें से एक बाउंड्री लाइन के बिल्कुल करीब गेंद तक पहुंचने में कामयाब हुए, और इससे पहले कि गेंद बाउंड्री लाइन क्रॉस करती उन्होंने गेंद रोक ली और उसके बाद थ्रो कर दी, और सिर्फ 1 रन लेने का मौका मिल सका बैट्समैन को। इस 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर हो गया 53 और एक खिलाड़ी आउट हुआ है। वलीद का इनफरादी स्कोर 45-45 और बिलाल नॉट आउट 4। फवाद एक मरतबा फिर तैयार हैं अगली गेंद फेंकने के लिए। फवाद आए गेंद की, और ये गेंद ऑफ स्टंप से खासी बाहर थी। अंपायर ने इसे वाइड बॉल करार दिया। विकेट कीपर ने गेंद रोकी, और इस अरसे में अंपायर ने इशारा दिया कि एक वाइड बॉल का रन, 1 रन का और इजाफा हुआ स्कोर में 54 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। और डेंजर मैन वलीद फवाद के सामने है, तो बड़ा मोहतात रहना होगा फवाद को, क्योंकि वलीद स्ट्रोक खेलने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देते। चंद बड़े अच्छे स्ट्रोक्स उन्होंने खेले हैं आए गेंद करने के लिए, और इस मरतबा भी वलीद ने उसे खेलने की कोशिश की, मगर सही तरीके से खेलने में कामयाब नहीं हुए, और गेंद करीब ही शॉर्ट स्क्वायर लेग की जानिब गई। फील्डर दौड़ते हुए आए, उन्होंने गेंद को फील्ड किया, रन लेने का कोई मौका नहीं था, तो स्कोर बदस्तूर 54 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। फवाद की गालिबन ये आखिरी गेंद होगी इस ओवर की। फवाद है बॉलर, और फवाद की इस गेंद को भी हिट लगाना चाहते थे, मगर गेंद लेग स्टंप पर थी। उनके बल्ले के निचले हिस्से पर लगने के बाद बैकवर्ड स्क्वायर लेग की जानिब गई। 1 रन लेने का मौका मिल गया बैट्समैन को। इस 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर हो गया 55 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। 55-1 पाकिस्तान स्टार्स। बड़ा अच्छा आगाज़ किया है उन्होंने, लेकिन इस ओवर में रन्स बनाने की रफ्तार थोड़ी सी कम हो गई है। फवाद बड़ी नपी तुली और अच्छी लाइन और लेंथ के साथ बॉलिंग कर रहे हैं, और कोशिश के बावजूद वलीद उन्हें अभी तक छक्का लगाने में कामयाब नहीं हुए इस ओवर में। देखना यह है कि इन आखिरी 2 गेंदों पर वो क्या कर पाएंगे। लेकिन इस वक्त जो बैट्समैन सामने हैं वो हैं बिलाल। बिलाल ने अभी तक 4 रन बनाए हैं। फवाद तैयार हुए गेंद करने के लिए बिलाल को। फवाद फवाद की इस गेंद को हिट लगाई कवर की जानिब, एक्स्ट्रा कवर ड्राइव। फील्डर गेंद के पीछे पीछे हैं, देखना ये कि वो गेंद रोकने में कामयाब होते हैं या नहीं। और बाउंड्री लाइन से चंद कदमों के फासले पर दूसरे जो फील्डर दौड़ते हुए आए थे मिड ऑफ से, वो गेंद तक पहुँचे। उनका थ्रो विकेट कीपर के पास आया, मगर इससे पहले 2 रन लेने का मौका मिल गया बैट्समैन को। 2 रन के इजाफे के साथ स्कोर हो गया 57 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। बिलाल का इनफरादी स्कोर 6। अभी भी वो बॉलिंग का सामना करेंगे। हल्की सी धूप मैदान पर फैली हुई, बादल अभी मौजूद हैं, मगर सूरज थोड़ी देर के लिए बादलों की ओट से निकल आए गेंद करने के लिए, और इस मरतबा अपनी कोशिश में कामयाब हुए। बिलाल ने उठता हुआ ज़ोरदार शॉट खेला, और फील्डर ने डाइव करके कैच लेने की कोशिश की, मगर कामयाब नहीं हुए। लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के बिल्कुल करीब फील्डर मौजूद थे। अच्छी कोशिश थी, मगर गेंद उनके हाथ को लगने के बाद बाउंड्री लाइन पार कर गई। नहायत उम्दा स्ट्रोक। स्कोर हो गया 61 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट, और बिलाल का इनफरादी स्कोर डबल फिगर में दाखिल हो गया। 10 रन उन्होंने बनाए हैं। बड़ा अच्छा चौका, बड़ी अच्छी बाउंड्री, अच्छी कोशिश थी। अगर ये कैच लेने में कामयाब हो जाते तो यकीनी तौर पर बड़ी इंपॉर्टेंट विकेट होती, क्योंकि ये पार्टनरशिप अब आहिस्ता आहिस्ता ख़तरनाक हो गई है। 61 फॉर 1। 4 ओवर्स इख्तिताम को पहुँचे, तो चौथे ओवर के ख़ात्मे पर 61 फॉर 1 यानी 24 गेंदों पर पाकिस्तान स्टार्स ने 61 रन बनाए हैं, और एक खिलाड़ी आउट हुआ है।
अब आए हैं गेंद करने के लिए साद, और साद दोनों बैट्समैन इस अरसे में अपनी प्यास बुझाने में मसरूफ़ हैं। गर्मी आज भी है, ख़ासतौर से मैदान के वस्त में तो आपको गर्मी ज़्यादा महसूस होती है। तो पानी लाया गया था बैट्समैन के लिए, उन्होंने अपनी प्यास बुझाने के बाद अपनी पोजीशन पर वो वापस आए। फील्डर्स भी दौड़ते हुए अपनी अपनी जगह जा रहे हैं और सात तैयार हैं अपना ओवर शुरू करने के लिए। ये 5वां ओवर होगा इनिंग्स का। Saad is getting ready to start his first over. This is going to be the first delivery. वलीद is the batsman और वलीद ने पहली गेंद पर हिट लगाई और बड़ा अच्छा स्ट्रोक था, वेरी वेल टाइम्ड स्ट्रोक, नहायत आला फुटवर्क, खेलने का दिलकश अंदाज, और गेंद डीप और वाइड मिड विकेट पोजीशन पर बड़ी तेज़ी के साथ फील्डर को अबूर करती हुई बाउंड्री लाइन पार कर गई। एक और चौका पाकिस्तान स्टार्स के लिए। उनका स्कोर हो गया 67 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। और वलीद का इनफरादी स्कोर 52। सिर्फ 18 गेंदों पर उन्होंने 52 रन बनाए हैं। (52 अभी तक वलीद की जो बैटिंग है वो काबिल ज़िक्र है, बड़ी उम्दा उन्होंने बैटिंग की है, बड़े ज़ोरदार स्ट्रोक्स उन्होंने खेले, ख़ासतौर से उनके छक्के जो हैं वो काबिल दीद थे। तो पाकिस्तान स्टार्स का स्कोर हो गया 73 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। और ये 5वां ओवर है इनिंग्स का। और एक मरतबा फिर वलीद ने ऊंचा शॉट खेला, फील्डर मौजूद थे, उन्होंने उछल कर कैच करने की कोशिश की मगर कामयाब नहीं हुए और गेंद एक मरतबा फिर बाउंड्री लाइन पार कर गई। एक और बड़ा दिलकश स्ट्रोक वलीद का और इस छक्के के साथ स्कोर हो गया 79 फॉर 1। और वलीद जब तक क्रीज पर मौजूद हैं मुखालिफ टीम के लिए ख़तरा भी मौजूद है। बड़े ख़तरनाक बैट्समैन हैं और बड़े ख़तरनाक अंदाज से खेल रहे हैं। नॉट आउट 64, सिर्फ 20 गेंदों पर उन्होंने ये रन बनाए हैं। अगली गेंद एक मरतबा फिर शॉर्ट गेंद थी, पूरा घूम गए लेकिन स्ट्रोक खेलने में कामयाब हुए, मगर इस मरतबा गेंद डीप और वाइड मिड ऑन पोजीशन पर खड़े हुए फील्डर के पास आई और दौड़ते हुए 1 रन का इजाफा किया स्कोर में। इस 1 रन के इजाफे के साथ मजमूई स्कोर हो गया 80, एक खिलाड़ी के आउट होने पर 80 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। साद अभी तक अपने ओवर में 19 रन दे चुके हैं। अनदर एक्सपेंसिव ओवर। साद तैयार हैं अपने बॉलिंग के निशान पर, गेंद करेंगे बिलाल को। बिलाल का स्कोर 10 और बिलाल भी इस मरतबा छक्का लगाने में कामयाब हुए। नहायत ही उम्दा शॉट मिड विकेट की जानिब, फील्डर के लिए कोई मौका नहीं गेंद को रोकने का। 6 मजीद रन और इस छक्के के साथ स्कोर हो गया 86 फॉर 1। बड़ी तेज़ी के साथ सेंचुरी की जाने बढ़ते हुए 100 रन के बिल्कुल करीब, 14 रन मजीद चाहिए हैं और एक बड़ा स्कोर होगा अगर इसी तरीके से ये दोनों खेलते रहे। ख़ासतौर से वलीद बड़ी उम्दा फॉर्म में हैं, बड़े शानदार शॉट खेलते हुए और यकीनी तौर पर एक इंतहाई ख़तरनाक बैट्समैन के तौर पर वो सामने आए हैं। साद एक मरतबा फिर बड़ा एक्सपेंसिव ओवर साद का, दौड़ते हुए आए गेंद करने के लिए और इस मरतबा ड्राइव करना चाहते थे मगर गेंद पॉइंट बाउंड्री की जानिब जा रही है, मगर फील्डर दौड़ते हुए गए, उन्होंने गेंद को फील्ड किया मगर इस अरसे में 2 रन लेने का मौका मिल गया बैट्समैन को। तीसरे रन के लिए भी वापस मुड़े वलीद, मगर इस अरसे में थ्रो विकेट कीपर के पास आ चुका था तो सिर्फ 2 रन मुकम्मल हुए। 2 रन के इजाफे के साथ मजमूई स्कोर हो गया 88 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। बिलाल ने 18 रन बनाए हैं। वलीद का इनफरादी स्कोर 65 और साद ने अपने पहले ओवर में 27 रन दिए, 27 रन इन इस फर्स्ट ओवर। 5वें ओवर के अख्ताम पर 88 फॉर 1। इस तरह 30 गेंदों पर 88 रन बने हैं। अभी 30 मज़ीद गेंदें बाकी हैं और अगर ये 40 या 50 रन भी बनाने में और कामयाब हो गए तो इट्स गोइंग टू बी ए फॉर्मेडेबल टोटल। दी अपोजिट साइड विल हैव टू चेज एट लीस्ट 140, 150 which is going to be a competitive and a difficult score. हल्की फुल्की तब्दीलियाँ की जा रही हैं फील्ड में और इस अरसे में बॉलर अपने बॉलिंग के निशान पर पहुंचने के बाद तैयार हो रहे हैं।
88 फॉर 1, 88 एक खिलाड़ी के आउट होने पर। बॉलर है फवाद, जिन्होंने अपने पहले ओवर में 12 रन दिए थे। देखना यह है कि इस ओवर में किस कारकर्दगी का मुजाहरा करते हैं। फवाद तैयार हुए गेंद करने के लिए। उनके सामने बैट्समैन हैं वलीद, 65 के स्कोर पर नॉट आउट, 65 नॉट आउट। वलीद proving to be a danger man for the opposing side. Now he's facing Fawad. So the score is 88 for the loss of 1 wicket. पाकिस्तान स्टार्स पहले बैटिंग करते हुए। वलीद 65 के स्कोर पर नॉट आउट और सामना कर रहे हैं फवाद का। फवाद तैयार हुए गेंद करने के लिए वलीद को, और वलीद ने इस मरतबा खेला स्क्वायर लेग की जानिब शॉट, मगर सिर्फ एक रन लेने का मौका मिला, लेकिन दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े और बड़ी तेज़ी के साथ रन मुकम्मल कर लिया। नहायत उम्दा रनिंग बिटवीन द विकेट, 2 गुड रन्स। सो 2 रन्स का और इजाफा हुआ स्कोर में, 90 मजमूई स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर। वलीद गालिबन पहले से तय कर चुके थे कि वो रन बनाएंगे, हालांकि गेंद फील्डर के हाथों में थी, मगर वो रन लेने के लिए दौड़ पड़े और बड़ी तेज़ी के साथ दौड़ते हुए अपनी क्रीज में पहुंच गए, तो 2 रन्स लेने का उन्हें मौका मिल गया। Waleed now is not out on 67. He has faced just 23 deliveries, 23 गेंदों पर और 67 रन, 67 रन। कमेंडेबल एफर्ट, ही इज़ प्लेइंग वेरी वेल। और थोड़ा सा दम लेने के लिए वो ज़मीन पर बैठ गए हैं। इस अरसे में तैयार हुई गेंद करने के लिए फवाद, जिन्होंने अभी तक 2 रन दिए हैं। अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं फवाद, पहला ओवर भी उन्होंने बड़ा अच्छा किया। गेंद करेंगे वलीद को, और वलीद पूरा घूम गए, ज़ोरदार हिट लगाना चाहते थे मगर कामयाब नहीं हुए, और विकेट कीपर ये समझ रहे थे कि गेंद गालिब उनके पास आ रही है। वो थोड़ी देर खड़े रहे, लेकिन गेंद करीबी ज़मीन पर गिर गई थी और उसका फ़ायदा उठाते हुए 1 रन हासिल कर लिया वलीद ने। इस 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर हो गया 91 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। 91 मजमूई स्कोर एक खिलाड़ी के आउट होने पर। बिलाल ने बनाए हैं 18, वलीद के स्कोर 67, 67। बड़ी अच्छी पार्टनरशिप इन दोनों खिलाड़ियों के दरमियान। पहली विकेट जल्दी गिर गई थी, मगर इन दोनों खिलाड़ियों के दरमियान इंतहाई मजबूत पार्टनरशिप अभी तक जारी है। लगता है आदिल साहब को गर्मी ज़्यादा लग रही है, लिहाजा वो अभी तक आए नहीं। मैच में गए। और अगली गेंद शॉर्ट थी आउटसाइड द ऑफ स्टंप, और जो बैट्समैन हैं वो अंपायर की जानिब देख रहे हैं कि वो कोई इशारा दें, मगर अंपायर ने कोई इशारा नहीं दिया। पाकिस्तान स्टार्स का स्कोर बदस्तूर 91 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। फवाद का एक और बड़ा अच्छा ओवर, अभी तक सिर्फ 2 रन उन्होंने दिए हैं 3 गेंदों पर। पाकिस्तान स्टार्स 91 फॉर 1। बिलाल इज़ बैटिंग ऑन 18, Waleed not out 67, and Bilal is facing. खेल चंद लम्हों के लिए रुक गया है, क्योंकि 8 नंबर की शर्ट पहने हुए जो है वो कलंदर के कोई खिलाड़ी मैदान में आए हैं, गालिबन कुछ हिदायत देने के लिए या कुछ डिस्कस करने के लिए, तो खेल चंद लम्हों के लिए रुक गया है। जो शाम की जानिब वक्त बढ़ रहा है, ह्यूमिडिटी खासी ज़्यादा हो गई है अब। सुबह जब हम आए, जब ह्यूमिडिटी खासी कम थी, हवा भी चल रही थी,
हवा अभी भी चल रही है, लेकिन ह्यूमिडिटी का तनासुब जो है वो पहले के मुकाबले में खासा ज़्यादा है। खेल अभी भी रुका हुआ है। तो जैसा कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि दिस इज़ द फर्स्ट सेमीफाइनल being played between two strong sides, SoCal Qalandar और उनके सामने हैं पाकिस्तान स्टार्स। Both sides have played very well, have qualified for the semi-finals. They have strength in bowling, batting and fielding. So we can hope to see another exciting match in this tournament. The organizers, Naveed Isa and Amir Siddiqui on the roll again. And this is a match summary. So far 5.3 overs have been bowled. Run rate is 16.55 including 6 extras. Total is 91 for 1. And Maqsood is the bowler who got only wicket, 1 for 22. फवाद हैं बॉलर, उनकी 5वीं गेंद होगी। फवाद का सामना कर रहे हैं बिलाल, और बिलाल ने ड्राइव किया आहिस्ता से गेंद को कवर की जानिब, ज़्यादा क़ुव्वत सर्फ नहीं की, लेकिन चूँकि कोई फील्डर वहाँ मौजूद नहीं था लिहाजा गेंद ज़मीन पर लुढ़कती हुई बाउंड्री लाइन पार कर गई। अंपायर ने 4 रन का इशारा दिया, तो 4 रन का और इजाफा हुआ स्कोर में। पाकिस्तान स्टार्स नाउ 95 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। आखिरी गेंद इस ओवर की बाकी रह गई है। फवाद ने 18 रन दिए और कोई विकेट हासिल नहीं की। बिलाल अभी भी हैं बैट्समैन। फील्ड में तब्दीली की जा रही है और अब एक फील्डर को बुला लिया गया है मिड विकेट पोजीशन पर। जो दायरा बना हुआ है उसके करीब आकर वो खड़े हो गए। फवाद तैयार हुए गेंद करने के लिए और उनके सामने बैट्समैन हैं बिलाल। फवाद आए, गेंद की और बिलाल ने ज़ोरदार हिट लगाई स्क्वायर लेग की जानिब। फील्डर दौड़े ज़रूर थे मगर उनके लिए कोई मौका नहीं था। गेंद हमारे कमेंट्री बॉक्स के बाएं जानिब थोड़े फासले पर आकर गिरी। एक ज़ोरदार छक्का, अंपायर ने इशारा दिया तो 6 रन का और इजाफा हुआ और उसके साथ ही सेंचुरी मुकम्मल हुई पाकिस्तान स्टार्स की। मजमूई स्कोर हो गया 101 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। बिलाल का इनफरादी स्कोर 28, उनका दूसरा छक्का। वलीद ने 67 रन बनाए हैं, 67 नॉट आउट। फवाद ने 2 ओवर्स में 24 रन दिए। अच्छी उन्होंने बॉलिंग की, सिर्फ इस आखिरी गेंद पर छक्का लगाने में कामयाब हुए बैट्समैन। तो इस तरह अब 4 ओवर्स का खेल बाकी रह गया है, यानी 24 गेंदें। देखते हैं किस हद तक स्कोर बनाने में कामयाब होते हैं। 101 दे हैव ऑलरेडी स्कोर्ड फॉर द लॉस ऑफ जस्ट 1 विकेट। Bilal is not out 28, Waleed not out 67, one of the best partnerships in this tournament. Both the batsmen are fully set, playing some delightful strokes. And let's hope that they continue in this way. Especially Waleed, he will try to score his 100, which will be a landmark. And Waleed is capable of doing that. He can score 100 at his will, providing entertainment to the spectators and to the players as well. Once again, a short drinks break. Now he goes back to his marking crease and gets ready to play the next delivery. मुअज़्ज़म अब्बास अब गेंद करने के लिए आए हैं। मुअज़्ज़म गेंद करेंगे वलीद को, 67 नॉट आउट। मुअज़्ज़म अब्बास आए गेंद करने के लिए वलीद को, लेकिन अपनी फील्ड में कुछ तब्दीली चाहते हैं और मिड विकेट पोजीशन पर जिस फील्डर को बुला लिया गया था उसे उन्होंने वहाँ से हटा दिया है। एक और फील्डर बिल्कुल मिड विकेट बाउंड्री पर आकर खड़े हो गए हैं हमारे कमेंट्री बॉक्स से कुछ दूर, तकरीबन बाउंड्री लाइन से मिले हुए। और वो फील्डर जो इससे पहले मिड विकेट पर खड़े हुए थे दायरे के पास, वो अब आ गए हैं अंपायर के बराबर में बैकवर्ड स्क्वायर लेग पोजीशन पर, बल्कि स्क्वायर लेग पोजीशन पर। तैयार हुए गेंद करने के लिए मुअज़्ज़म।
दौड़ते हुए आए, गेंद की और इस मरतबा एक और बड़ा अच्छा शॉट खेला, बैक फुट पर आकर इसको स्ट्रोक खेलने में कामयाब हुए कवर बाउंड्री की जानिब, मगर फील्डर वहाँ पर मौजूद थे। 2 रन्स लेने का मौका मिल सका बैट्समैन को। 2 रन्स के इजाफे के साथ वलीद का स्कोर हो गया 69, जबकि पाकिस्तान स्टार्स 103 103 फॉर 1 विकेट। और इस वक्त ये गेंद ऑफ स्टंप से बाहर थी, उसे कट करने गए थे, लेकिन सही तरीके से खेलने में कामयाब नहीं हुए और गेंद गई विकेट कीपर के पास, जिन्होंने डाइव करते हुए कैच लिया। कॉट बिहाइंड की अपील की और गालिबन उन्हें अंपायर ने आउट करार दिया है, क्योंकि बैट्समैन ज़्यादा खुश नज़र नहीं आ रहे। वो अंपायर से कुछ आर्ग्यू करते हुए और जाके गालिबन अंपायर को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं आउट नहीं हूँ। साथ ही वो अपने जो बैट्समैन हैं उनसे भी कुछ गुफ्तगू करते हुए, जबकि फील्डर्स अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं, क्योंकि यकीनी तौर पर उन्होंने डेंजर मैन से निजात हासिल कर ली है। और वलीद जिस अंदाज से खेल रहे थे, लोगों को तवक्को थी कि वह अपनी सेंचुरी मुकम्मल करने में कामयाब हो जाएंगे, मगर इस मरतबा उन्होंने आउटसाइड दी ऑफ स्टंप गेंद को स्क्वायर कट करने की कोशिश की, कामयाब नहीं हुई और गेंद गई विकेट कीपर के पास। बड़ी ज़ोरदार अपील हुई और वलीद आउट होकर पवेलियन में वापस। 69 ग्लोरियस रन्स स्कोर्ड बाय वलीद on 25 deliveries. He played some delightful strokes, especially his sixes were superb and marvelous. So well played Waleed, and we are waiting for the new man. 103 for the loss of 2 wickets, and finally this partnership is broken, and finally the fielding side gets a breakthrough. 103 for 1. पाकिस्तान स्टार्स पहले बैटिंग करते हुए, दूसरी टीम है SoCal कलंदर, वो भी मजबूत टीम है और मेरा ख्याल है जो पाकिस्तान स्टार्स हैं उनके जहन में टारगेट होगा कम से कम 140 150 रन्स का। दे कैन स्टिल डू इट। लेट्स सी व्हाट हैपन्स। एंड द नेक्स्ट मैन हैज़ कम इन। वी आर वेटिंग फॉर हिज नेम टू अपीयर। Bilal is still there with 28. 12 balls have been bowled. 28 runs he has scored. Mozam Abbas got a very, very vital, important and crucial wicket of danger man Waleed. Amir is the new man, and Amir will face Mozam. So success for Mozam. We will be able to judge whether he is bowling good or not at the end of this over. But anyway, he succeeded in getting rid of Waleed. Now he goes back to the top of his bowling mark. Mozam is the bowler, Mozam Abbas, his full name. And he will be bowling to Amir, the new man. Amir talking to his partner on the other side. In the meantime, the square leg umpire was collecting the ball, wearing the shirt number 10. Now he throws the ball to the bowler, and the bowler is ready to bowl the next delivery. There's still some discussions going on. I don't know what about, but the play is held up for the time being. Now umpire signals that the play should go on, but I don't know what's the problem, because now the fielders are moving towards the batsman, and now the non-striking end batsman is coming towards his partner to discuss something. Now he pats him, and Amir is back to his popping crease, and Mozam is ready to bowl. Amir, as usual, running around. So it's Amir who is the batsman and Mozam is the bowler.
And this time Amir plays very stylishly, coming in line with the ball. He comes forward and plays with a dead straight bat back to the bowler. Stylish style of batting. Once again, Mozam comes in and bowls to Amir. Amir drives, beautiful stroke. Perfect off drive, but the fielder is there at the long off boundary. Only one run conceded, 104 for the loss of 2 wickets. Amir opens his account on 1. And now Bilal will face. Mozam has just conceded 3 runs in 3 deliveries and has got 1 wicket. Mozam Abbas. Comes in and bowls, and this ball on the leg side, and he flicks it to the fine leg. We have to see whether it goes off the leg or off the bat. I think there is no signal. So it's 104 for the loss of 2 wickets. Marathon partnership for the second wicket between 2 gallant players, especially Waleed, who played a beautiful knock. He scored 69, and his partner also played very well. Bilal is still at the crease, batting with all the vigor and venom, and is facing Mozam now. Mozam comes in and bowls, and this time it's a hard and high shot. He's going to be out. Fielder is there, but he drops it. It was a dolly catch, not very difficult. He was in the right position, but the ball popped out of his hands. Very unfortunate for the fielding side. And a new lease of life rather, for the batsman. 106 for the loss of 2 wickets, and Bilal moves on to 30 with this lucky escape. Mozam in again to bowls, and once again he drives it to off his toes to mid wicket. Fielder is there, so only 1 run added. 1 more run to the score. It takes the total to 107 for the loss of 2 wickets. And Bilal is not out 31. Amir not out 1. 107 for 2. And the end of Mozam's over, a very good over. He got 1 wicket, conceded just 6 runs on 6 deliveries. So very fine effort by Mozam. Now 3 overs are left. It means that 18 balls at their disposal, and they will try to muster as many runs as possible. Once again, there is a conference going on between the fielding side. We have seen a lot of conferences. I don't know what about, but there are a lot of discussion going on around the field, sometimes between the batsmen, sometimes between the fielders, and sometimes between fielders and the batsmen. So once again the play is about to begin, and now the bowler is Arsalan, who has bowled 1 over for 14 runs. Bilal not out 31, Amir not out 1. Pakistan Stars 107 for the loss of 2 wickets. Arsalan also bowled well, although conceded 14 runs, but overall his performance was good. But Arsalan seems to be very, very fussy and very conscious about his field. He makes a lot of changes and faces the field once or twice in every over. Now he is ready to bowl. Arsalan comes running in and bowls at this time. Another glorious shot, and there's going to be a danger that he's going to be out, and the catch is taken, a very good running catch, and so the fielding side gets the 3rd wicket, a very, very important wicket, and Bilal and Amir were 2 batsmen batting, and this time it was a straight drive, and the ball went into the air and went straight to a fielder who was running
forward and was able to take the catch. It is a good running catch. So the end of the innings and the end of the game, as far as Bilal is concerned, he played well for his 31 runs. And now the next man in is Wasim. 107 पे 3 खिलाड़ी आउट हुए हैं और अभी भी आउट होने वाले खिलाड़ी जो थे वो अच्छी इनिंग्स खेलने के बाद आउट हुए। बिलाल, जिन्होंने 31 कीमती रन बनाए, एक मरतबा फिर उन्होंने ज़ोरदार हिट लगाने की कोशिश की, ड्राइव किया, स्ट्रेट ड्राइव, मगर गेंद हवा में फील्डर के पास आई, जिन्होंने आगे की जानिब दौड़ते हुए झुककर कैच लिया। बड़ा अच्छा कैच था और इस तरह कीमती विकेट हासिल की अपनी टीम के लिए। अरसलान की ये पहली विकेट और सिर्फ 14 रन दिए हैं, एक विकेट उन्होंने हासिल की। तो ये जो 2 ओवर्स अब तक हुए हैं ये बड़े अच्छे ओवर हुए हैं और इस तरह किसी हद तक वापस आने का मौका मिला है फील्डिंग साइड को। SoCal कलंदर, ये भी एक बड़ी मजबूत और मुतवाज़िन टीम है और इनकी बैटिंग साइड भी बड़ी स्ट्रॉन्ग है। सो लेट्स सी व्हाट्स गोइंग टू हैपन एंड व्हाट वुड बी द टारगेट फॉर देम। अब वसीम सामना करेंगे अरसलान, कामयाब बॉलर का, लेकिन फील्ड में चंद हल्की फुल्की तब्दीलियाँ की जा रही हैं। अरसलान इंतज़ार कर रहे हैं, अरसलान तैयार हुए। हवा थोड़ी सी और तेज़ हो गई है, हमारे जाएं जानिब जो परचम लगाए गए हैं बड़ी तेज़ी के साथ फड़फड़ाते हुए आए गेंद करने के लिए और इस मरतबा ज़ोरदार तरीके से हिट लगाई। गेंद हालांकि हवा में आई मगर हमारे कमेंट्री बॉक्स के करीब आकर उसने टप्पा खाया। अंपायर ने हाथ उठाकर बताया कि ये एक और छक्का है। तो इस तरह वसीम ने भी छक्के के साथ अपनी इनिंग्स का आगाज़ किया और पाकिस्तान स्टार्स का स्कोर हो गया 113, 113 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। ये 8वां ओवर है इनिंग्स का। अरसलान की गेंदों पर ये छक्का लगना खासी हैरानकुन बात है क्योंकि वो बड़ी टाइट लाइन और लेंथ के साथ बॉलिंग कर रहे हैं। 20 रन देकर एक खिलाड़ी उन्होंने आउट किया है और अगली गेंद वाइड बॉल, 1 रन का और इजाफा हुआ स्कोर में। 114 मजमूई स्कोर 3 खिलाड़ियों के आउट होने पर। चूँकि इस ओवर के बाद अभी 2 ओवर्स का खेल बाकी है तो देयर इज़ एवरी पॉसिबिलिटी दैट दे माइट क्रॉस 140-145 रन्स, which is going to be a difficult target for the batting side. आए गेंद करने के लिए और एक और वाइड बॉल, वेरी वाइड आउटसाइड द ऑफ स्टम्प और सडनली अरसलान लॉस्ट हिज ग्रिप, लॉस्ट हिज लाइन एंड लेंथ एंड बॉल्ड 2 वाइड बॉल्स। 115 3 खिलाड़ियों के आउट होने पर स्कोर। वसीम नॉट आउट 6, अमीर नॉट आउट 1। अगली गेंद और इस मरतबा हिट लगाने में कामयाब हुए। अच्छा स्ट्रोक और फील्डर दौड़े ज़रूर थे मगर उनके लिए कोई मौका नहीं गेंद को पकड़ने का। गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जाकर गिरी और एक और छक्का। तो वसीम भी वलीद की तकलीद करते हुए उसी अंदाज से छक्के लगा रहे हैं। उनका दूसरा छक्का और उनका इंफरादी स्कोर हो गया 12, जबकि मजमूई स्कोर 121, 3 विकेटों के नुकसान पर। 3 गेंदें इस ओवर की अभी बाकी हैं, उसके बाद 2 मज़ीद ओवर्स। इस तरह 15 गेंदों का खेल बाकी रह गया है इस इनिंग्स में। Still a strong breeze blowing across the field, but there is humidity. It's humid and warm. I can't say it very hot, but it's hot. Houston these days is facing hot weather, which is not unusual, but the main problem is this, that there has been no rains for the last so many years. आए गेंद करने के लिए और इस मरतबा भी शॉर्ट गेंद थी, उड़ती हुई आई और बैट्समैन उसे पुल करने में कामयाब हुए। बड़ा आसान उनका हदफ था जिसे उन्होंने हासिल किया। एक और छक्का और इस छक्के के साथ स्कोर हो गया 127, 3 विकेटों के नुकसान पर और 18 रन हो गए वसीम के। बड़ा उम्दा शॉट वसीम का, शॉर्ट गेंद ली और बड़ा उनके लिए आसान था और उन्होंने आसानी के साथ छक्का लगाया और बड़ा ज़ोरदार छक्का था। हालांकि 2 फील्डर बिल्कुल बाउंड्री लाइन पर मौजूद हैं मगर उनके लिए कोई मौका नहीं था। एक और गेंद और इस मरतबा वसीम उसे चॉप करना चाहते थे मगर खेलने में सही तरीके से कामयाब नहीं हुए। तो इस तरह एक डॉट बॉल, यकीनी तौर पर सुख का सांस लिया होगा बॉलर ने डॉट बॉल करने के बाद। और अब आखिरी गेंद इस ओवर की बाकी रह गई है। 127, 3 विकेटों के नुकसान पर 127 for the loss of 3 wickets.
आए गेंद करने के लिए और यॉर्क करने की कोशिश की, अच्छी गेंद थी और बैट्समैन उसे खेलने में तो कामयाब हुए, लेकिन गेंद बिल्कुल बल्ले के निचले हिस्से पर लगी और करीबी शॉट मिड विकेट की जानिब गई। वहाँ कोई फील्डर मौजूद नहीं था, बॉलर खुद ही भागते हुए गए, मगर इस अरसे में 1 रन लेने का मौका मिल गया बैट्समैन को। 7 ओवर मुकम्मल हुआ तो 8वें ओवर के ख़ात्मे पर मजमूई स्कोर 128, 3 खिलाड़ी आउट, 128 फॉर 3, रन रेट 16 रन्स पर ओवर। अरसलान हैज़ बोल्ड 2 overs and has taken 1 for 35। मैं आपको बता रहा था कि कल के एक्सटेंडेड गेम्स की वजह से गला खासा ख़राब है और ऊपर से तुर्रा ये हुआ कि मेरे जो साथी हैं वो कहीं फ़रार हो गए, गालिबन क्रिकेट मैच खेल रहे हैं, तो उनका बड़ी बेचैनी के साथ इंतज़ार है। एक मरतबा फिर जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि ये कॉन्फ्रेंस मैच भी है, एक और छोटी सी कॉन्फ्रेंस दोनों बैट्समैनों के दरमियान, उनके साथ 2 फील्डर भी शामिल हो गए और खेल चंद लम्हों के लिए फिर रुक गया है। अमीर नॉट आउट 1, वसीम नॉट आउट 19, पाकिस्तान स्टार्स 128 और 3 खिलाड़ी आउट। बॉलिंग में तब्दीली, गालिबन 7 हैं बॉलर, लेट मी चेक, अभी थोड़ी देर के बाद जब तब्दीली होगी तो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन बहरहाल ये 7 लगते हैं और जी हाँ 7 हैं बॉलर। इन्होंने 1 ओवर में 27 रन दिए, वेरी वेरी एक्सपेंसिव ओवर, और वलीद ने इनकी खासी पिटाई की। 7 तैयार हो रहे हैं गेंद करने के लिए और इस बात का अंपायर को ख्याल रखना चाहिए, बहुत ज़्यादा वक्त जो है वो ज़ाय हो रहा है, या तो फील्डरों की कॉन्फ्रेंस के दरमियान या फिर अब बैट्समैनों की कॉन्फ्रेंस के दरमियान। तकरीबन हर ओवर के बाद और ओवर्स के दरमियान भी बैट्समैन सलाह मशवरा ज़रूर करते हैं। इन ए हाई लेवल मैच दिस इज़ नॉट अलाउड एंड दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। 7 तैयार हो रहे हैं गेंद करने के लिए और उनके सामने बैट्समैन हैं वसीम, जिन्होंने 3 छक्कों की मदद से 19 रन अब तक बनाए हैं, 19 नॉट आउट। और गालिबन 7 का रनअप गलत हो गया या फिर बैट्समैन तैयार नहीं थे, क्योंकि रुक गए। अंपायर ने डेड बॉल का इशारा दिया और 7 वापस जा रहे हैं अपने बॉलिंग के निशान पर। साद आएंगे और वसीम का उठता हुआ ज़ोरदार शॉट, और उस मरतबा भाई भरपूर क़ुव्वत वाला शॉट था, लेकिन जिसे कहते हैं सही तरीके से टाइम नहीं कर पाए। 134 स्कोर 3 खिलाड़ियों के आउट होने पर। वसीम की भी कोशिश है कि हर गेंद पर वो हिटें लगाएं, किसी हद तक अपनी कोशिशों में कामयाब भी हुए। साद आए गेंद करने के लिए और इस मरतबा वसीम कामयाब हुए। गेंद हमारे बाएं जानिब जो फील्डर खड़े हुए हैं बाउंड्री लाइन के करीब, उनके पास आई। एक 134 पाकिस्तान स्टार्स 3 विकेटों के नुकसान पर। बाएं जानिब चूँकि कुछ खिलाड़ी खड़े हुए हैं, लिहाजा मैं देख नहीं सका और गालिबन बैट्समैन आउट हो गए थे। कैच सीधा फील्डर के पास आया। तो इस तरह 134 4 विकेटों के नुकसान पर साद ने अपनी पहली विकेट हासिल की, 33 रन देकर 1 विकेट। अभी उनकी 4 गेंदें इस ओवर की बाकी। हमजा हैं नए बैट्समैन। अमीर अब तक क्रीज पर मौजूद हैं 1 के स्कोर पर।
हमज़ा ने अभी तक कोई रन नहीं बनाया, अभी भी बैटिंग करने के लिए आए हैं और 8.2 ओवर्स का खेल हो चुका है। रन्स की जो औसत एवरेज है 16.08। साथ अब गेंद करेंगे नए आने वाले बैट्समैन हमज़ा को। एक मरतबा फिर दोनों जो बैट्समैन हैं उनके दरमियान मीटिंग, दोनों आपस में कुछ सलाह मशवरा करते हुए, और जैसा कि मैंने कहा तकरीबन हर ओवर में एक या दो मरतबा ये मीटिंग ज़रूरी है, which is not a very good sign. The play should go on because there are a lot of hot spots and lot of pauses between the play, which is not good. And that's the reason why yesterday the matches ended at about 2:30, and on the first day the matches ended at about 12:20. One has to follow the rules and play the game. और साथ ही इस गेंद को ड्राइव किया, अच्छा स्ट्रोक था और गेंद बड़ी तेज़ी के साथ बाउंड्री लाइन पार कर गई। ग्राउंड के साथ खेला गया स्ट्रोक, लिहाजा कैच का कोई मौका नहीं था। 4 रन का और इजाफा हुआ स्कोर में, 138, 4 विकेटों के नुकसान पर मजमूई स्कोर पाकिस्तान स्टार्स का। हमज़ा ने चौके के साथ अपने इनफरादी स्कोर का आगाज़ किया। अमीर नॉट आउट 1 और साद ने 37 रन देकर एक खिलाड़ी को आउट किया है। साद के सामने अभी भी हमज़ा हैं बैट्समैन, एंड रन रेट इज़ 16.24। और इस मरतबा भी बल्ला घुमाया, ज़ोरदार तरीके से कनेक्ट करने में कामयाब हुए और गेंद बिल्कुल सामने साइड स्क्रीन के बाएं जानिब खड़े हुए फील्डर के पास गई। लिहाजा सिर्फ एक रन लेने का मौका मिल सका बैट्समैन को। इस एक रन के इजाफे के साथ 139, 4 विकेटों के नुकसान पर 139 फॉर 4, और 2 गेंदें इस ओवर की बाकी रह गई हैं। साद आए गेंद की, ज़ोरदार तरीके से बल्ला घुमाया मगर कनेक्ट करने में कामयाब नहीं हुए। गेंद थोड़ी सी नीची भी रही और गालिबन यही वजह थी कि वो स्ट्रोक खेलने में कामयाब नहीं हुए। तो स्कोर बदस्तूर 139 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स। 2 बैट्समैन एट द क्रीज, हमज़ा who has scored 5 runs and Amir who has scored just 1 run. Now Amir will be facing Saad, going back to the top of his bowling mark. Saad comes in and bowls, and this time batsman comes out of the crease, tries to hit him over the bowler, but gets a top edge and the ball goes behind the wicket keeper, and the batsman running for 2. There was a throw at the batting end, but still the run was completed. They took just 1 run, 140 for the loss of 4 wickets. 140 पर 4 खिलाड़ी आउट। अमीर का स्कोर हो गया 2 और हमज़ा ने 5 रन बनाए हैं। 7 का ओवर मुकम्मल हुआ, 2 ओवर 39 रन और एक खिलाड़ी उन्होंने आउट किया है। 2 ओवर 39 रन 1 विकेट, और ये आखिरी ओवर है इस इनिंग्स का। 140, 4 विकेटों के नुकसान पर 10वां और आखिरी ओवर। तो 6 गेंदों पर कोशिश होगी बैट्समैनों की कि ज़्यादा से ज़्यादा रन बनाएं। अगर 10 रन भी बनाने में कामयाब हो गए तो स्कोर 150 हो जाएगा। मौज़म अपनी फील्ड सेट कर रहे हैं। मौज़म ने 6 रन देकर एक खिलाड़ी को आउट किया। बड़ी अच्छी बॉलिंग का उन्होंने मुजाहरा किया अपने पहले ओवर में। मौज़म आए गेंद करने के लिए, और इस मरतबा ज़ोरदार उठता हुआ शॉट, ऊंचा शॉट था, लेकिन गेंद हवा में मुअल्लक हो गई और बड़ा आसान कैच आया विकेट कीपर के पास। तो एक और विकेट गिरी और हमज़ा अमीर जो सिर्फ 2 रन पर खेल रहे थे आउट होकर पवेलियन में वापस। पाकिस्तान स्टार्स का स्कोर 140, 5 विकेटों के नुकसान पर।
ज़ोरदार हिट लगाना चाहते थे मगर गेंद हवा में उछल गई और बड़ा आसान कैच था जो विकेट कीपर ने लिया। तो इस तरह एक 140 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स। और हमज़ा अभी तक क्रीज पर मौजूद हैं 5 के स्कोर पर नॉट आउट। और दूसरे बैट्समैन का इंतज़ार है जो अभी अभी जो है वो डग आउट से नमूदार हुए। उनका नाम जब स्क्रीन पे आएगा तो मैं आपको बताऊंगा कि कौन से बैट्समैन हैं। पाकिस्तान स्टार्स 140 5 विकेटों के नुकसान पर। और नए बैट्समैन अब आए हैं और खेलेंगे। उनका नाम है मोहम्मद। तो मोहम्मद सामना करेंगे मौज़म का, जिन्होंने बड़ी कीमती विकेट हासिल की। 2 विकेटें हो गई उनकी, 6 रन देकर 2 विकेट। मौज़म आए गेंद करने के लिए और इस मरतबा ड्राइव करने में कामयाब हुए लॉन्ग ऑन की जानिब, मगर 2 फील्डर वहाँ मौजूद थे, लिहाजा सिर्फ 1 रन बनाने का मौका मिल सका बैट्समैन को। इस 1 रन के इजाफे के साथ 141 मजमूई स्कोर हो गया 5 विकेटों के नुकसान पर। 141 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स। 141 फॉर 5। और अब हमज़ा सामना करेंगे, नहीं मोहम्मद, हमज़ा सामना करेंगे 5 के स्कोर पर नॉट आउट। अभी तक फील्ड एडजस्ट की जा रही है और खेल एक मरतबा फिर हस्ब रिवायत कुछ देर के लिए रुका हुआ। अब तैयार हुए मौज़म गेंद करने के लिए हमज़ा को। और हमज़ा ने बड़े ज़ोरदार तरीके से बल्ला घुमाया मगर कनेक्ट करने में कामयाब नहीं हुए और गेंद जो है वो सीधी विकेट कीपर के पास आई। 141 for the loss of 5 wickets and Hamza has scored 5 runs on 3 deliveries. मोहम्मद नॉट आउट 141 मजमूई स्कोर 5 खिलाड़ियों के आउट होने पर। और मौज़म ने अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा किया है। 2 विकेटें, 2 कीमती विकेटें उन्होंने हासिल की। तो 7 रन देकर 2 विकेटें उन्होंने हासिल की हैं। मौज़म अब्बास हैं बॉलर। हमज़ा नॉट आउट 5, मोहम्मद नॉट आउट 1 और हमज़ा सामना कर रहे हैं बॉलिंग का। आखिरी ओवर इस इनिंग्स का, 3 गेंदें बाकी रह गई हैं। मौज़म आए गेंद की, इस मरतबा हिट लगाने में कामयाब हुए। फील्डर वहाँ मौजूद हैं बाउंड्री लाइन के करीब। उन्होंने गेंद को फील्ड किया और इस अरसे में दौड़ते हुए 2 रन मुकम्मल कर लिए बैट्समैन ने। तो 2 रन का और इजाफा हुआ स्कोर में 143 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स। और हमज़ा का इंफरादी स्कोर हो गया 7। हमज़ा नॉट आउट 7। दो गेंदें बाकी रह गई हैं। मौज़म अब्बास आए गेंद की और इस मरतबा ज़ोरदार हिट लगाने में कामयाब हुए, लेकिन नहीं कनेक्ट नहीं कर पाए क्योंकि गेंद विकेट कीपर के पास आई। लेकिन मौके से फ़ायदा उठाते हुए, क्योंकि विकेट कीपर डीप खड़े हुए हैं, 1 रन बड़ी तेज़ी के साथ उन्होंने हासिल किया। इस 1 रन के इजाफे के साथ 144 फॉर 5। तो मौज़म की उम्दा बॉलिंग जारी। अभी तक उन्होंने छक्का या चौका लगाने का मौका नहीं दिया बैट्समैन को। कमेंडेबल एफर्ट। लास्ट बॉल कमिंग अप। आए गेंद करने के लिए और इस मरतबा भी कामयाब नहीं हुए। बड़ी अच्छी गेंद थी, एक मरतबा फिर बल्ला घुमाया मगर कनेक्ट नहीं कर पाए। तो बड़ा उम्दा ओवर मौज़म अब्बास का इख्तिताम को पहुंचा और उसके साथ ही इनिंग्स का ख़ात्मा। तो पाकिस्तान स्टार्स ने पहले बैटिंग करते हुए 144 रन बनाए 5 खिलाड़ियों के आउट होने पर। मौज़म अब्बास ने 2 ओवर्स किए, 10 रन देकर 2 विकेट हासिल किए। और पाकिस्तान स्टार्स की इनिंग्स की ख़ास बात वरीद की शानदार बैटिंग है, जो 69 रन बनाने के बाद आउट हुए। उनका पूरा पूरा साथ दिया अमीर ने, जिन्होंने 31 रन बनाए। उनके अलावा कोई और काबिल ज़िक्र कारकर्दगी दिखाने में कामयाब नहीं हुआ। अब SoCal कलंदर अपनी इनिंग्स का आगाज़ करेंगे और थोड़ी देर के लिए हम वी टेक अ शॉर्ट ब्रेक।
ये बड़ी हौसला अफजा बात है कि इस यूएसए टेप बॉल चैम्पियनशिप में बहुत से इंटरनेशनल स्टार्स भी हैं पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने वाले, या वो जो पाकिस्तान के क्रिकेट के दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं। इनमें एक नाम मोहम्मद इलियास का भी है जो अपनी सलाहियतों का मुजाहरा कर चुके हैं। इज़ ए वेरी वेरी प्रॉमिसिंग प्लेयर और मेरा ख्याल है बड़ा अच्छा रोशन इनका मुस्तकबिल है अगर ये मेहनत करते रहे। और ये वक्त हमारे साथ मौजूद हैं एक छोटे से इंटरव्यू के लिए। जी इलियास, वेलकम। थैंक यू सो मच सर। कैसा लग रहा है आपको इस टूर्नामेंट में खेलने का? बहुत ज़बरदस्त है। अभी तो मैच के लिए कुछ आधा घंटा है, लेकिन मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। टेप बॉल टूर्नामेंट मेरा लाइफ का पहला टूर्नामेंट है। वैसे दोस्तों के साथ क्रिकेट सीखी भी टेप बॉल से, लेकिन इस तरह का बड़ा टूर्नामेंट कराना और जिन्होंने कराया आमिर सिद्दीकी भाई ने, तो उनको क्रेडिट जाता है और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ अंदर खेलने के लिए। वेरी गुड। आप माशाल्लाह बड़े प्रॉमिसिंग प्लेयर हैं और बड़ी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आपका कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो आप क्या समझते हैं, क्या आपके चांसेस हैं और कितनी आप मेहनत करने की सलाहियत रखते हैं? जी बिल्कुल, कंपटीशन तो हर जगह होता है। जिस तरह हमारी पाकिस्तान की डोमेस्टिक है और सारे अच्छे खासे प्लेयर आ रहे हैं, सारे यंगस्टर बॉलर आ रहे हैं 140 प्लस और परफॉर्मर है डोमेस्टिक के, तो हमारे लिए भी बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है डोमेस्टिक में परफॉर्म करने का और वहाँ से फिर PSL और PSL के बाद पाकिस्तान टीम में आना। जो भी परफॉर्मेंस करता है तो ऑटोमेटिकली सिलेक्शन कमेटी की नज़रों में आ जाता है। इलियास, ये बताइए आपके ख्याल में एज ए फास्ट बॉलर लाइन और लेंथ ज़्यादा जो है इफ़ेक्टिव है या स्पीड? जाहिर सी बात है दोनों इफ़ेक्टिव है। अगर स्पीड के साथ लाइन और लेंथ हो जाए तो और ही फिर मज़े ही मज़े होते हैं, लेकिन अगर स्पीड कम है तो उसमें भी ये नहीं होना चाहिए कि ये बॉलर खेल नहीं सकता या वो कर नहीं सकता। जिस तरह सारे बॉलर हैं, अब्बास भाई को देख लें या आसिफ भाई हमारे थे पास में, वो 135 130 वाले बॉलर थे, लेकिन किसी को खेलने नहीं दे रहे थे। तो आपके पास स्किल होने चाहिए, स्पीड आती जाती रहती है। वो आप अपनी स्किल के बारे में क्या कहेंगे, क्या कुछ आपके पास है? मैं तो अपने स्विंग पे ज़्यादातर वो कोशिश करता हूँ, और जिस तरह की T20 वाइट बॉल क्रिकेट है तो उसमें मैं वेरिएशन पे ज़्यादा प्रैक्टिस भी कर रहा हूँ और कोशिश करता हूँ कि जितने मेरे प्रैक्टिस मैचेस होते हैं या छोटे छोटे टूर्नामेंट्स होते हैं उसमें अप्लाई करूँ ताकि मेरे और स्किल आ जाए, ताकि मैं उस पर बड़े इवेंट्स में उसको अप्लाई करूँ। बहुत शुक्रिया इलियास और विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। मेरे साथ मौजूद हैं रमीज़ राजा सीनियर नहीं, ये एक और बड़े प्रॉमिसिंग प्लेयर हैं। एक ज़माने में तो इनका बड़ा डंका था और बड़ी अच्छी इन्होंने परफॉर्मेंस भी दी, लेकिन क्रिकेट जो है वो बाई चांस है। बाज़ औक़ात इत्तेफाक़ात होते हैं कि आप जल्दी टीम में आ जाते हैं, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आप एक मुद्दत तक इंतज़ार करते रहते हैं, और बाज़ औक़ात ये होता है सब कुछ करने के बाद भी आप टीम में शामिल नहीं हो पाते। लेकिन बहरहाल ही इज़ ए वेरी वेरी प्रॉमिसिंग प्लेयर और मैं समझता हूँ इस टूर्नामेंट की खुशकिस्मती है कि जैसे नौजवान खिलाड़ी यहाँ शामिल हैं। तो पहले तो इस टूर्नामेंट के बारे में बताइए, कैसा महसूस कर रहे हैं रमीज़? थैंक यू सो मच सर, आपने इतना अच्छा इंट्रोडक्शन दिया। बहुत अच्छा लग रहा है। एक्चुअली मैं 2 साल से यहाँ पे हार्ड बॉल के, टेनिस बॉल के टूर्नामेंट्स खेलता रहा हूँ और इतना अच्छा एटमॉस्फेयर मैंने अभी तक देखा नहीं है। जिस तरह आमिर सिद्दीकी ने जिस तरह से ये पूरा मेला सजाया है, आई थिंक हैट्स ऑफ टू हिम। उनका जितना हार्ड वर्क है इस टूर्नामेंट के लिए, यहाँ काफ़ी टूर्नामेंट्स खेले लेकिन इतना अच्छा एटमॉस्फेयर, इतनी अच्छी क्रिकेट कंडीशंस मैंने देखी नहीं है, तो बहुत मेहनत है और वो नज़र आ रही है। माशाल्लाह। लेकिन मुझे आमिर सिद्दीकी साहब से बड़ी शिकायतें हैं कि वो मुझे चाय नहीं पिलाते। लिहाजा आपकी भी रिकमेंडेशन होनी चाहिए जब आपको वो मिले, ये बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी। अच्छा रमीज़, ये बताइए आप अपनी इनफरादी परफॉर्मेंस से किस हद तक मुतमईन हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, जब भी क्रिकेट खेली है और पाकिस्तान में जब तक खेलता रहा हूँ, परफॉर्मेंसेस रही हैं, आखिरी के 3-4 सीजन्स भी रही हैं। PSL में भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा सीज़न रहे थे। 2 साल से यहाँ आ चुका हूँ और अब MLC के लिए क्रिकेट खेल रहा हूँ, तो इट्स जस्ट लाइक अनदर स्टेज ऑफ लाइफ। तो इंसान को मूव ऑन करना चाहिए और अब यहाँ पर क्रिकेट खेल रहा हूँ प्रोफेशनली, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे क्रिकेट खेल भी रहा हूँ, थोड़ी सी कोचिंग भी करता हूँ। तो एक अच्छा एक्सपीरियंस है USA में, जिस तरह से क्रिकेट को अब एक्सप्लोर किया जा रहा है और जितना प्रमोट किया जा रहा है, तो बहुत अच्छी चीज़ है। स्पेशली हम देसी कल्चर के लिए बहुत अच्छा है कि पाकिस्तानीज़ यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भारी मकदार में क्रिकेटर्स भी आ चुके हैं और हर टूर्नामेंट में ही नज़र आते हैं। और इस तरह के इवेंट्स अगर होते रहेंगे तो अच्छा है, क्रिकेट और ज़्यादा हाईलाइट होगी और प्रमोट होगी। फ्रॉम रेड एंड वाइट बॉल टू टेप बॉल, ये एक बड़ा अजीब सा जर्नी है।
तो आप अचानक स्विच ओवर करते हुए कैसा महसूस करते हैं? बस ये बचपन से हमेशा खेली है टेप बॉल, तो हम लोग तो बिल्कुल। पाकिस्तान में गली मोहल्लों में और स्ट्रीट्स पे बहुत खेले होते हैं। ये है कि थोड़ा सा टाइम लगता है एडजस्ट होने में, 1-2 मैचेस लग जाते हैं, समटाइम थोड़ा सी कुछ बॉल्स लग जाती हैं, आसान नहीं होता फ़ौरन से स्विच करना वहाँ से यहाँ। लेकिन हमारे साथ अवैध ज़िया मौजूद हैं, इंटरनेशनल स्टार, पाकिस्तान की जानिब से भी खेल चुके हैं और सुईगैस की नुमाइंदगी करते थे और बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं। यहाँ के जो टूर्नामेंट्स हैं उनमें वक्तन फ़वक्तन हिस्सा लेते रहते हैं और इनकी जो बैटिंग है उसका एक मखसूस अंदाज़ है। आज हम इनसे कुछ गुफ्तगू करेंगे। पहले तो इस टूर्नामेंट के बारे में कि कैसा महसूस कर रहे हैं आप? सबसे पहले तो मैं जितने भी देखने वाले हैं और सुनने वाले हैं सबको मेरी तरफ से हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, और जिसके हवाले से ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ करते हैं हर साल आमिर भाई, और ज़बरदस्त एक इवेंट करवाते हैं हर साल आमिर भाई। बहुत अच्छी एफ़र्ट है इनकी और एक अच्छा फ़न है यहाँ पे।
क्योंकि हम बेसिकली तो 8 बॉल के प्लेयर हैं और टेप बॉल भी साथ एज अ फ़न के लिए खेलते हैं और ज़बरदस्त टूर्नामेंट करवाते हैं हर साल आमिर भाई, उनकी बहुत ज़्यादा एफर्ट है और मैं इन्हें भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। अवैस आप क्या समझते हैं कि रेड बॉल खेलने के बाद या वाइट बॉल खेलने के बाद और इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने के बाद टेप बॉल खेलने में आपको एडवांटेज है या डिसएडवांटेज? डिसएडवांटेज मैं ये कह सकता हूँ कि हार्ड बॉल खेलनी होती है ज़मीन की, नहीं मतलब ग्राउंड पे खेलनी होती है, ज़मीन पे खेलनी होती है, तो टेप बॉल में आपके पास इतना टाइम नहीं होता है, आपको हर बॉल जो है वो हवा में खेलना है 6 मारने के लिए कि ओवर कम होते हैं, तो थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा डिफरेंस है कि आप ऊपर से छक्का मारना मुश्किल होता है, नीचे खेलना थोड़ा आसान होता है, तो थोड़ा टफ होता है, लेकिन एज अ प्रोफेशनल थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि बड़ी तेज़ी के साथ टेप बॉल पॉपुलर हो रही है और मैंने अभी अपनी कम्युनिटी के दौरान बताया था कि इस वक्त दुनिया भर के 31 मुल्कों में टेप बॉल बाकायदा खेली जा रही है और 8 एशियन मुल्कों में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। तो इसकी क्या वजह है इतनी पॉपुलैरिटी की? देखें, जब से सोशल मीडिया आया है स्पेशली पाकिस्तान में टेप बॉल का बहुत क्रेज़ है, ज़्यादातर लोग जो है टेप बॉल को पसंद करते हैं, वो इस वजह से कि शॉर्ट फॉर्मेट है। पाकिस्तान में तो यहाँ पे तो 8-10 ओवर के मैचेस हो रहे हैं, वहाँ पे 3 ओवर के 4 ओवर के मैचेस होते हैं, तो शॉर्ट गेम होती है, लोग एंटरटेन होते हैं चौके छिक्के देख के, तो इस वजह से वो ज़्यादा लाइक करते हैं इस क्रिकेट को। अपनी टीम के चांसेस को आप कैसे देख रहे हैं इस टूर्नामेंट में? हमारे पास अलियास है, रमीज़ राजा जूनियर है, साद अली है, वकास है, मैं हूँ, हम बेसिकली तो सारे 8 बॉल खेलने वाले हैं। जी हाँ। तो अभी टेप बॉल तो हम एज अ फ़न के लिए खेल रहे हैं, लेकिन हम अपनी पूरी एफर्ट करेंगे कि इस टूर्नामेंट को विन करें इंशाल्लाह। और मैं समझता हूँ जिन प्लेयर्स के आपने नाम लिए आप समेत सभी बड़े प्रॉमिसिंग प्लेयर्स हैं और मैं समझता हूँ जो परफॉर्मेंस दिखा चुके हैं वही इस बात का सबूत हैं, तो मेरा ख्याल है कि आपके बड़े अच्छे चांसेस हैं, तो विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर, इंशाल्लाह बस आप हमारे लिए दुआ करें कि हम ये जीतें इंशाल्लाह। थैंक यू। थैंक यू। हमारे साथ मौजूद हैं आज़म चौधरी, एक और प्रॉमिसिंग यंग अपकमिंग प्लेयर, और इन्हें एक एजाज़ हासिल है कि इन्होंने पिछले टूर्नामेंट में ये वाहिद बैट्समैन थे जिन्होंने सेंचुरी स्कोर की, और मैं चूँकि यहाँ मौजूद था, इन्होंने बहुत खूबसूरत हिटें लगाईं और बिल्कुल अनऑर्थोडॉक्स इन्होंने बैटिंग नहीं की, बिल्कुल इन्होंने प्योर क्रिकेटिंग स्ट्रोक्स खेले और बड़े जानदार स्ट्रोक्स थे, तो मेरा ख्याल है कि ये अपनी फॉर्म जारी रखेंगे। अब इनसे पूछते हैं कि कैसा महसूस कर रहे हैं इस दूसरे टूर्नामेंट को खेलते हुए। बिल्कुल बड़ा हमें अच्छा लग रहा है, दोबारा से आ रहे हैं, सेकंड टाइम है हमारा ह्यूस्टन में, हम वर्जीनिया से आए हैं। तो काफ़ी अच्छा मैनेजमेंट, काफ़ी आमिर भाई ने बड़ी हमें सपोर्ट की है, बड़ा हमें फेवर दिए हुई है, तो हमें बड़ा अच्छा लगा, बड़ा अच्छा एटमॉस्फेयर है यहाँ पे, तो काफ़ी अच्छा लगा हमें। अच्छा, माशाल्लाह आप बड़ी अच्छी बैटिंग करते हैं, और क्या एक्स्ट्रा एफर्ट्स करते हैं आप, प्रैक्टिस कितनी करते हैं, फिटनेस की तरफ कैसी तवज्जो दे रहे हैं, ज़रा थोड़ा सा बताइए। जी बिल्कुल, अब टेप बॉल में है तो थोड़ी फिटनेस काफ़ी मैटर करती है, तो वंस अ वीक हम प्रेफर करते हैं कि प्रैक्टिस करें, क्योंकि जॉब की वजह से इतना नहीं कर सकते यहाँ पे, लेकिन कोशिश होती है हमारी वंस अ वीक हम प्रैक्टिस किया करें उस पर। तो और हमारे वहाँ पे तकरीबन सीज़न भी 4-5 मंथ्स का होता है क्रिकेट का, तो कोशिश होती है उसको ज़्यादा से ज़्यादा अवेल करें, तो अभी तक तो अच्छा चल रहा है। वेरी गुड। क्या अज़ाइम है आगे, आप क्या टारगेट है? हर प्लेयर का एक टारगेट तो होता है ना कोई, तो क्या आप चाहते हैं कि किस हद तक एक्सेल करें आगे? आपने कोचिंग करनी है, यूएस की क्रिकेट टीम में शिरकत करने के लिए कोशिश करनी है, या कोई और टारगेट आपके सामने है? नहीं बिल्कुल, अब टेप बॉल है यहाँ पे काफ़ी ग्रो अप कर गया है, स्पेशली यूएस में पिछले साल से काफ़ी अब बड़े टूर्नामेंट्स हो रहे हैं, मेजर लीग आ रही है, एक बहुत बड़ी लीग है, तो उसमें यह है कि अपनी 100% एफर्ट देंगे, देखेंगे कि हम कितना अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, अपनी एफर्ट करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, जितना हो सकेगा करेंगे। तो बाकी है कि हम खेलते हैं, शौक फ़न है हमें काफ़ी टेप बॉल से, और इसमें जो भी हुआ हम करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच, और वेल प्लेड, और आल्सो बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। ये बड़ी खुशी की बात है कि टेप बॉल टूर्नामेंट से बहुत से नौजवान खिलाड़ी सामने आए हैं, उन्होंने अपनी सलाहियतों का इजहार किया है, और ये वाज़ेह तौर पे इजहार किया है कि उनमें वो तमाम कैपेबिलिटीज़ मौजूद हैं कि वो हर तरीक़े की क्रिकेट खेलने की, हर लेवल की क्रिकेट खेलने की सलाहियत रखते हैं। ऐसे ही एक नौजवान क्रिकेटर हमारे पास मौजूद हैं, इमरान चौधरी। लास्ट ईयर के ये चैम्पियन थे और बड़ी अच्छी इनकी कारकर्दगी रही, ऑलराउंडर हैं, और वाशिंगटन की तरफ से पहले खेलते थे, फिर इस दफ़ा बॉल्टीमोर को ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और बड़ी इनसे तवक्कुआत वाबस्ता हैं कि फ्यूचर में ही इज़ गोइंग टू बी ए वेरी फाइन क्रिकेटर। तो इनसे पूछते हैं पहले तो इस टूर्नामेंट के बारे में, क्या ये फ़ील करते हैं और एंजॉय कर रहे हैं या नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ यहाँ की मैनेजमेंट का, सब भाइयों का जिन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया टूर्नामेंट, और हम हर साल आते हैं यहाँ पे, बल्कि ट्वाइस अ ईयर हम
भी हुआ है नहीं नहीं यार मैं खा लूँगा हाँ वो आवाज़ में खा लेता ये रोटियाँ वहाँ पर मिले आप खा लें चावल ही है ओहो है वहाँ पे है कभी काफी तो ये कमेंट्री इस वाले पे हो रही है शुरू नहीं होना अभी Welcome to coverage of second inning, first semi-final between SoCal Qalandar and पाकिस्तान फर्स्ट। काफ़ी दोनों बड़ी टीमें हैं। पाकिस्तान फर्स्ट ने पहली बैटिंग की और 144 रन बनाए और इस तरह टारगेट जो है वो 145 का टारगेट दिया है। 14.5 का रिक्वायर्ड रन रेट है टू स्टार्ट विद। और देखें सोकाल खलंदर का पहला मैच अगर आपको याद हो, दे प्लेड रियली गुड अगेंस्ट वॉशिंगटन कैपिटल्स। हालांकि दे लॉस्ट अर्ली विकेट्स बट दे स्टिल मैनेज टू स्कोर चेस 144, so exact target 144, 145 to win. So all set to go. पाकिस्तान फर्स्ट के जो बॉलर रेहान कराएंगे पहला ओवर और यूसुफ फेस करेंगे सोकाल खलंदर की तरफ से। अच्छी बॉल थी ऑफ पे, बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, स्विंग एंड मिस। अच्छी लाइन और अच्छी लेंथ थी रेहान की, तो पहली डॉट बॉल मिलेगी। आई थिंक 14.5 की रिक्वायर्ड रन रेट है, तो इनको बड़े शॉट्स चाहिए लेकिन दे नीड टू कंजर्व द विकेट्स। अभी काफ़ी लॉन्ग वे टू गो फॉर सोकाल खलंदर। इफ़ यू आर जस्ट जॉइनिंग अस, दिस इज़ द फर्स्ट सेमीफाइनल बिटवीन पाकिस्तान स्टार्स वर्सेस सोकाल खलंदर। दोनों टीमों जो हैं अपने तीनों लीग गेम जीते थे, तो अच्छी परफॉर्मेंस रही है। तो प्लेयर अच्छा शॉट खेला, ऑफ ए बॉल थी, कनेक्ट करने में कामयाब हुए और पहला सिक्स, फर्स्ट सिक्स ऑफ द सेकेंड इनिंग। सोकाल खलंदर
कि पहले मैच में भी काफ़ी वॉशिंगटन कैपिटल्स के अगेंस्ट दे मैनेज टू चेस 144. एक और अच्छा शॉट खेला, शॉर्ट बॉल थी, कनेक्ट और कनेक्ट करने में कामयाब हुए टूवर्ड्स द लेग साइड डीप मिड विकेट. और एक और 6 रन मिलेंगे सोकैल कलंदर को. ऑफ कोर्स दे शोइंग देयर इंटेंशंस, चेसिंग 145, 144 इज द टोटल, 145 इज द टारगेट. तो बड़ा टोटल चेस कर रहे हैं. लेकिन जिस तरह अपने पहले मैच में, अगर आप लोगों को याद हो कि उन्होंने वॉशिंगटन कैपिटल्स के अगेंस्ट भी एग्जैक्ट ये सेम टारगेट जो है वो चेस किया था. देखिए पाकिस्तान फर्स्ट के पास अच्छी बॉलिंग लाइनअप है. हमजा बंगश उनकी तरफ से खेलते हैं, और भी अच्छे इनके पास बॉलर मौजूद हैं. तो विल बी इंटरेस्टिंग टू सी कि हाउ दे कैन मैनेज टू चेस दिस टोटल डाउन. और इस दफ़ा रिपीट करना चाहते थे शॉट को, लेकिन जो है वो लेंथ काफ़ी अच्छी थी इस दफ़ा और मिस कर गए. और इस तरह डॉट बॉल मिलेगी. 4 बॉलें हो चुकी हैं और स्कोर जो है वो 12 पे पहुंच चुका है. देर चेसिंग 145. रिकॉर्ड रन रेट जो है वो 14 है. अभी तक इनका जो इस वक्त जो रन रेट है सोकैल कलंदर का वो 18 है. और ये नो बॉल का इशारा दे रहे हैं लेग अंपायर. फुल टॉस थी टूवर्ड्स द लेग साइड, अंपायर ने नो बॉल दी. और इस तरह ये फ्री हिट भी मिलेगी सोकैल कलंदर को. और इस तरह स्कोर मूव्ड अप टू 13 4 बॉलों के बाद, इनफैक्ट 14 क्योंकि एक सिंगल भी लिया नो बॉल के साथ. और इस तरह 2 रन मिले हैं सोकैल कलंदर को. रिक्वायर्ड रन रेट इस वक्त इस अबाउट 14 है. काफ़ी अभी भी जस्ट स्टार्टेड, पहले ओवर चल रहा है अभी. तो यूसुफ फर्स्ट बॉल फेस करना है. और अच्छा खेला टूवर्ड्स द डीप मिड विकेट. वहाँ पे हमजा बंगश वहाँ मौजूद, स्ट्रेट टू द फील्डर. और इस तरह एक ही रन बनेगा. और अच्छा कनेक्ट किया और एक और 6 रन मिलेंगे. और इस तरह मौज़म अब्बास ने बहुत ही एग्रेसिव बैटिंग डिस्प्ले, पहले ओवर के इख्तिताम पे ही 21 रन मिल चुके हैं सोकैल कलंदर को. जिस तरह से सोकैल कलंदर की परफॉर्मेंस रही है लीग गेम में, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रही है. तीनों गेम अपने जीते थे सोकैल कलंदर. पहला गेम बड़ा वॉशिंगटन कैपिटल्स के अगेंस्ट उन्होंने 100 एग्जैक्ट सेम चेस किया था 144. हालांकि उनके 4 प्लेयर आउट हो गए थे शुरू में, लेकिन दे मैनेज टू चेस डाउन 144 इन देयर फर्स्ट लीग गेम. और अभी भी जो है ये एग्जैक्ट सेम टारगेट है पाकिस्तान स्टार्स का. अब देखना होगा कि पाकिस्तान स्टार्स किस तरह वापस आएंगे इस गेम में और किस तरह कंटेन कर पाएंगे सोकैल कलंदर को. इट्स अ रिमाइंडर, इट्स अ सेमीफाइनल नंबर 1. सो यू विन, यू लूज, यूर आउट ऑफ द टूर्नामेंट. तो देखें कि किस तरह ये होगा. और अगर उस पर नज़र आप डालें पाकिस्तान फर्स्ट की बैटिंग में कि किस तरह परफॉर्म किया उन्होंने. सोकैल कलंदर जो है वो 21 रन बना चुके हैं एक ओवर के इख्तिताम पे. स्टिल नीड 124 रन इन 9 ओवर्स. देखिए किस तरह ये एक्साइटिंग रहेगा ये मैच. एक और एंगल से आप ये देखें, एक और एंगल है हमारे व्यू करने का बैटिंग को. स्लाइटली डिफरेंट एंगल, बट यू कैन सी द बॉलर, बैट्समैन एंड अंपायर एंड कीपर.
और ये आए हैं और ये वाइड बॉल कॉल की लेग टूवर्ड्स द लेग साइड और ये एक्स्ट्रा रन मिलेगा सोकैल कलंदर को। इस तरह जो है स्कोर मूव अप टू 22 और इस तरह पहला ही ओवर का अख्ताम हुआ है। दूसरे ओवर की पहली बॉल वाइड कॉल हुई और अच्छा शॉट खेला, ऊंचा शॉट खेला और नो चांस फॉर द फील्डर और एक और 6 रन मिलेंगे। इस दफ़ा केम फ्रॉम यूसुफ बैट, बहुत ही अच्छा शॉट, लेंथ लेकिन अच्छी डिफ़िकल्ट शॉट था लेकिन एबल टू मैनेज टू गो अंडरनीथ द बॉल और इस तरह एक और 6 रन मिलेंगे सोकैल कलंदर को। व्हाट अ स्टार्ट फॉर सोकैल। एक और ऊंचा शॉट खेला है लेकिन वहाँ फील्डर वहाँ मौजूद और इस तरह 1 रन ही मिलेगा सोकैल कलंदर को। इस वक्त थोड़ा सा विंडी सिचुएशन है और यू आर प्लेइंग अगेंस्ट द विंड। बैट्समैन को जो है हैव टू कीप दिस इन माइंड कि अगर ऊंचा शॉट खेलेंगे तो चांस है कि बॉल में स्टिल स्टे विद इन द फील्ड। और अच्छी डिलीवरी की इस दफ़ा फिर एक्सीलेंट क्लीन हिटिंग बाय, इस दफ़ा इट केम फ्रॉम मौज़म बैट। मौज़म ने जो है वो 25 रन बना लिए हैं और सिर्फ 7 बॉलें उन्होंने फेस की हैं। तो एक्सीलेंट स्टार्ट बाय सोकैल कलंदर, 35 रन्स बना चुके हैं और इस तक भी सेकंड ओवर का गेम अभी शुरू हुआ है। स्टिल 3 मोर डिलीवरीज टू गो इन दिस ओवर। व्हाट अ स्टार्ट बाय सोकैल कलंदर। और बॉलर जो है वो फीलिंग द हीट, इज अंडर प्रेशर, ऑलरेडी गिवन 2 sixes और इस तरह एक और अच्छी डिलीवरी थी। लेंथ इस दफ़ा अच्छी इन्होंने दी और बैट्समैन जो है वो लेग की तरफ खेलना चाहते थे, कनेक्ट नहीं कर पाए और सिर्फ और ये डॉट बॉल, रेयर डॉट बॉल मिलेगी सोकैल कलंदर की। रेयर फर्स्ट डॉट बॉल आई वुड प्राउडली से। तो 35 रन बना हो चुके हैं अब तक और अब तक दूसरे ओवर का गेम जारी है। और कैच लेने में कामयाब, इस दफ़ा कट किया लेकिन वहाँ पे पॉइंट पे फील्डर मौजूद और इस तरह सोकैल कलंदर की पहली विकेट गिरी है। ऑफ कोर्स दे नीडेड अ विकेट और बहुत फॉर पाकिस्तान फर्स्ट सही टाइम पे उनको विकेट लेने में कामयाब हुए हैं। तो इस तरह मौज़म अब्बास जो कि बहुत डेंजरस लग रहे थे, 25 रन्स बना चुके थे सिर्फ और सिर्फ 8 बॉलों पे और अपनी विकेट लूज़ कर गए और इस तरह पाकिस्तान फर्स्ट की पहली कामयाबी। अब गेम थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो जाएगा लेकिन जैसा रिमाइंडर के पहले गेम में भी सोकैल कलंदर ने के 4 खिलाड़ी बहुत जल्दी आउट हुए थे, आई थिंक विद इन द 10 रन्स व्हेन दे वर चेसिंग 144 अगेंस्ट वॉशिंगटन कैपिटल्स, बट दे मैनेज टू विन दैट गेम और उनकी मिडल में बहुत अच्छी पार्टनरशिप रही थी। देखें आप किस तरह ये जारी रख सकेंगे। और we wait for who's going to be the next batsman. The scorer, if you are scoring, please update the scorecard. और बहुत अच्छा शॉट और क्या स्क्वायर लेग की तरफ और बहुत अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट और इट कुड बी अ डेंजरस रन बट फील्डर जो है वो सही तरह थ्रो नहीं कर पाए एंड देयर वाज नो वन बैकिंग ऑफ एट द नॉन स्ट्राइकर एंड। और इस तरह 1 रन और मिलेगा सोकैल कलंदर को। इस तरह जो है वो दूसरे ओवर के अख्ताम पे स्कोर हैज़ मूव्ड अप टू 36 विद लॉस ऑफ 1 विकेट। 7 आए हैं नए बैट्समैन
और उनके साथ यूसुफ जो है जिन्होंने ओपनिंग की थी वो उनके साथ यहाँ मौजूद हैं। अभी देयर सम डिस्कशन गोइंग ऑन। अब्रार हिमसेल्फ ने इनकी बेस्ट फिगर रही हैं। अब्रार तो सब बॉलिंग करने नहीं आ रहे, लेकिन जो कि कैप्टन है पाकिस्तान फर्स्ट के, ही टुक 6 विकेट्स इन वन ऑफ द लीग गेम्स, प्रॉब्ली द रिकॉर्ड आई वुड प्रॉब्ली से। तो वो ख़ुद भी बहुत अच्छे बॉलर हैं। तो इस वक्त जो है आई थिंक मोहम्मद विल कंटिन्यू फॉर हिज सेकंड ओवर। थोड़ी सी फील्ड एडजस्टमेंट कि कहाँ फील्ड प्लेसिंग करनी है इनको। लेग के प्लेयर हैं तो वो डीप विकेट पे इन्होंने प्लेयर लिया है ताकि पुल करें तो वहाँ पे कोई प्रोटेक्शन हो। और बहुत ही अच्छी डिलीवरी, वेरी गुड लाइन, वेरी गुड लेंथ। और इसको लेग पे खेलना चाहते थे लेकिन बॉल आखिरी मोमेंट में थोड़ी सी स्विंग हुई और इस तरह जो है वो डॉट बॉल मिलेगी पाकिस्तान फर्स्ट को। अगेन इट्स अ नॉकआउट गेम, फर्स्ट सेमीफाइनल of USA Tapeball Cricket National Championship 2022. I'm sure you're enjoying the coverage of this event live on Facebook and YouTube. Thanks for all your support. Thanks for watching these coverage, these games. और बहुत अच्छी बॉल थी, बड़ा क्रॉस द लाइन गए, कनेक्ट करने में कामयाब नहीं हुए और इस तरह एक और डॉट बॉल मिलेगी। 2 बैक टू बैक डॉट बॉल मिली हैं। इस तरह डॉट बॉल 10 ओवर्स के फॉर्मेट में आती हैं तो नॉर्मली you feel under pressure as a batsman. Required run rate जो है इस वक्त 14.22 है और बहुत अच्छी डिलीवरी। अपील फॉर कैच कॉट बिहाइंड, लेकिन अंपायर का कोई रिएक्शन नहीं। इस वक्त जो है अंपायर के फ़राइज़ हबीब साहब दे रहे हैं, जो कि हिमसेल्फ ही हैज़ अ टीम ऑफ हिमसेल्फ। काफ़ी एक्सपीरियंस अंपायर भी हैं और अच्छे क्रिकेटर भी हैं हबीब साहब। और अपील थी काफ़ी लेकिन अंपायर ने कोई रिएक्शन नहीं आया और इस तरह एक और डॉट बॉल, 3 डॉट बॉल्स मिली हैं पाकिस्तान फर्स्ट को। द रिक्वायर्ड रन रेट हैज़ गॉन अप लिटिल बिट but still it's almost the same when they started the inning. 14.22 जो है इस वक्त रिक्वायर्ड रन रेट है। और बहुत अच्छी डिलीवरी, कंप्लीटली डिसीव किया लेंथ से और इस तरह कनेक्ट नहीं कर पाए बिल्कुल। और ये एक और डॉट बॉल मिलेगी पाकिस्तान स्टार्स को। 4 बैक टू बैक डॉट बॉल्स मिली हैं जो कि यू कैन इमेजिन in this short format, it's too much to ask for a batsman. Required run rate has gone up a bit to 14.86 और batsman भी इस वक्त जो है वो pressure में आ चुके हैं। Of course they want to make sure they score runs in the last 2 balls. वहाब जो है वो बॉलर हैं और इस दफ़ा कनेक्ट करने में कामयाब हुए। शॉर्ट बॉल टूवर्ड्स द लेग साइड और साद ने कोई भी इसमें दफ़ा मिस्टेक नहीं की और इस तरह उनको बाउंड्री मिली है। फाइनली आफ्टर 4 डॉट डिलीवरीज उनको जो है वो 4 रन मिलेंगे इस बॉल, लास्ट बॉल ऑफ द ओवर। और इस दफ़ा फिर स्लो बॉल कंप्लीटली रिसीव किया और लेग पे थी, इसको पुल करना चाहते थे बट वाज नॉट देयर टू हिट और मिस करने के बाद एक डॉट बॉल मिली। इस तरह एट द एंड ऑफ द ओवर नंबर 3 द स्कोर हैज़ मूव्ड अप टू 40 रन्स, द लॉस ऑफ 1 विकेट। द रिक्वायर्ड रन रेट इज़ नाउ गॉन अप टू 15 टू बी एग्जैक्ट, बट अभी भी काफ़ी गेम बाकी है। Just a reminder, if you're listening to us from Houston area, please come and join us
a beautiful facility of ICCMC, ईसा क्रिकेट क्लब एंड मल्टी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे इस वक्त है बाउंसी कैसल भी है फॉर किड्स, काफ़ी सारे खाने की भी अरेंजमेंट है। तो आइए हमें ज्वाइन करें, एंजॉय करें इस नॉकआउट गेम्स। पहला सेमीफाइनल है, उसके बाद जो नेक्स्ट सेमीफाइनल है वो ह्यूस्टन स्टैलियंस वर्सेस लोडाई ज़ल्मी। लोडाई ज़ल्मी भी बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है। दे स्टार्टेड लाइक दे लॉस्ट देयर फर्स्ट गेम बट आफ्टर दैट दे केम बैक वेरी स्ट्रॉन्ग और दे क्वालिफाइड फॉर द सेमीफाइनल एज अ फोर्थ टीम। तो उनका जो मैच होगा वो ह्यूस्टन स्टैलियंस का है जो कि इस वक्त नंबर 1 पे थी पूल, और उनका मैच इसके बाद है। तो इट विल बी अगेन समथिंग टू लुक फॉरवर्ड फॉर। बहुत एक्साइटिंग सेमीफाइनल होने वाला है। ऑफ कोर्स जो चारों टीमें पहुंची हैं दे आर द टॉप टीम्स ऑफ देयर ग्रुप एंड ऑफ कोर्स दे विनिंग द गेम्स, मोस्ट ऑफ द गेम्स। सोकल खलंदर ने तीनों गेम जीते। इस तरह पाकिस्तान फर्स्ट ने भी अपने गेम्स जीते हैं। तो टॉप टीम्स आर प्लेइंग अगेंस्ट ईच अदर इन अ नॉकआउट गेम, ट्रूली डिजर्व टू बी इन सेमीफाइनल्स बोथ ऑल द 4 टीम्स। और इस तरह आई एम श्योर हमें बहुत एक्साइटिंग प्ले ऑफ गेम्स देखने को मिलेंगे। सो पहला प्ले ऑफ गेम जारी है अगेंस्ट बिटवीन सोकल खलंदर एंड पाकिस्तान स्टार्स। सोकल खलंदर ने पहले पाकिस्तान स्टार्स ने पहले बैटिंग की और इस तरह 144 रन बनाया और ऊंचा शॉट खेला, फील्डर नीचे आ रहे हैं और व्हाट अ कैच, आउटस्टैंडिंग कैच लिया है। आई थिंक वलीद शब्बीर है वहाँ पे, उन्होंने कैच लिया है, अनबिलीवेबल कैच। बिल्कुल बाउंड्री पे खड़े होके एक हाथ से उन्होंने जंप करके ये कैच लिया है बिहाइंड हिम। और बैट्समैन इज वेटिंग फॉर द जजमेंट बट लुक्स आउट फ्रॉम हियर। बट ये है, विल सी कि हाउ इट गोज़। और इस तरह ये काफ़ी बड़ी विकेट मिली है। यूसुफ जो है वो 8 रन पे खेल रहे थे और अंपायर इज़ गोइंग टू हैव सम कॉन्वर्सेशन विद द फील्डर। बट बहुत अच्छा कैच पकड़ा वलीद शब्बीर ने एट द एज ऑफ द बाउंड्री, जो कि 6 रन हो रहे थे, एंड उन्होंने एक हाथ से जो है वो जंप करके ये कैच लिया है। There's still some conversation going on. अंपायर जो है वो जाके देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। इस तरह ये एक और बड़ी विकेट लग रहा है कि मिलेगी। सोकल खलंदर के दूसरा खिलाड़ी शायद आउट हुए हैं। स्टिल वेटिंग फॉर टू स्कोर कार्ड टू बी अपडेटेड। और इस तरह सोकल खलंदर ने अपनी दूसरी विकेट का नुकसान उठाया विद स्कोर ऑफ 40। होल्डर फवाद जो है वो नए बैट्समैन आए हैं सोकल खलंदर की तरफ से। और इस तरह मोहम्मद ने ये दूसरी विकेट ली है। पहली विकेट भी इन्हीं को मिली थी और ये दूसरी विकेट भी मोहम्मद लेने में कामयाब हुए। और इस तरह सोकल खलंदर हैज़ लॉस्ट दिस सेकंड विकेट। और बहुत अच्छी डिलीवरी, लॉग, वेरी नाइस लाइन और लेंथ। बैट्समैन को कोई चांस नहीं मिल सका कि वो बड़ा शॉट खेलें, लेकिन वो मैनेज कर सके प्ले टूवर्ड्स द ऑन रीजन फॉर अ क्विक सिंगल। इस तरह स्कोर मूव्ड अप टू 41, लॉस ऑफ 2 विकेट्स और रिक्वायर्ड रन रेट हैज़ गॉन अप टू 16। उनको 104 रन चाहिए 39 डिलीवरीज में। अभी भी 6.3 ओवर्स का गेम बाकी है। तो सी के हाउ सोकल खलंदर manages or go about this chase of 144.
ये एग्जैक्ट सेम चेस है. They were able to successfully compete against the Washington Capitals on the first league game and the first night of the tournament. SoCal Qalandars ने उस वक्त उनकी हालांकि they lost 4 quick wickets but still managed to come back and chase down 144 in the first encounter of the league game. अच्छी बॉल अच्छी थी, इन स्विंग थी, लेकिन साथ उसको खेलने में कामयाब हुए टूवर्ड्स द स्क्वायर लेग रीजन और एक ही रन बनेगा. As soon as you play a dot ball or maybe a single and the score required run rate goes up. The required run rate जो है इस वक्त 16.26 हो चुकी है. ह्यूस्टन स्टैलियंस टीम जो है वो ग्राउंड में मौजूद है. उनका नेक्स्ट सेमीफाइनल है इसके बाद, ह्यूस्टन स्टैलियंस वर्सेस लोडाई ज़ल्मी. वो भी बहुत ही अच्छा इनकाउंटर होगा. बोथ टीम्स आर रियली गुड. और बड़ा शॉट खेलना चाहते थे फवाद, लेकिन कनेक्ट नहीं कर पाए और इस तरह एक और डॉट बॉल मिलेगी. बड़ा अच्छा वर्क करा है ये मोहम्मद ने अब तक. 4 बॉलों पे सिर्फ 2 रन दिए हैं और रिक्वायर्ड रन रेट जो है वो 16.26 हो चुका है. जैसे मैंने कहा पहले ही, जैसे भी आप डॉट बॉल मिलती है उस तरह आपको रिक्वायर्ड रन रेट ऑलवेज गोज अप. और ये एक बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन सिर्फ जो है मैनेज टू प्ले टूवर्ड्स द लॉन्ग ऑन रीजन फॉर अ सिंगल. किस तरह ये करेंगे फवाद. अच्छा ओवर कराया है इस ओवर में. आई थिंक सिर्फ 3 ही रन आए हैं. बहुत ही अच्छा ओवर कराया. इस तरह एट द एंड ऑफ द ओवर नंबर 4 स्कोर मूव अप टू 43. द लॉस ऑफ 2 विकेट्स. अभी भी उनको 36 बॉल्स पे 103 रन चाहिए. रिक्वायर्ड रन रेट जो है इट्स अबाउट 17. तो काफ़ी अभी स्टिल लॉट नीड्स टू बी डन बाय सोकल कलंदर. पहले जो ना यहाँ पे इस वाले में वो आते थे रिक्वायर्ड रन रेट कितना है और इस यहाँ नीचे बहुत बड़ी. हमारे साथ अवैध ज़िया मौजूद हैं. इंटरनेशनल स्टार, पाकिस्तान की जानिब से भी खेल चुके हैं और सुयस की नुमाइंदगी करते थे और बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं. यहाँ के जो टूर्नामेंट्स हैं उनमें वक्तन फ़वक्तन हिस्सा लेते रहते हैं और इनकी जो बैटिंग है उसका एक मखसूस अंदाज़ है. आज हम इनसे कुछ गुफ्तगू करेंगे. पहले तो इस टूर्नामेंट के बारे में कि कैसा महसूस कर रहे हैं आप. सबसे पहले तो मैं जितने भी देखने वाले हैं और सुनने वाले हैं सबको मेरी तरफ से हैप्पी इंडिपेंडेंस. Back to the game.